welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle. Today we have a webinar on the FEMA and overview. And on this subject, our very learned, experienced and star speaker CA Lukesh Gupta ji is with us. Gupta ji became the chartered accountant in 1998. Did LLB from Delhi University in 2001. DISA ICI with first rank in India. Forensic Audit and Fraud Detection course in 2018, again from ICI. He is a senior partner of Messrs. Shyam S. Gupta and Company, having office at Vivek Bihar. He has a very rich experience in audit and as a guest speaker also. He earlier was speaker on statutory audit and concurrent audit of bank branches at a large number of seminars organized by branches and study circle. Speaker on FEMA, FCRA, and international tax and other areas relating to forex in various seminars. He provided training to bank staff on operational areas including forex at a number of occasions. He also contributed to professional development contributed as a member of group on certification course on concurrent audit of bank under IASB. Presently faculty for certification course on concurrent audit of banks. He also contributed as a member of group form to prepare a minimum audit checklist for concurrent audit of banks and revision of Bose and Jilani committee under PDC. This is the brief profile of our today's speaker, CA Lukesh Gupta ji. I welcome you, sir, once again. I also welcome all the attendee, Mudit ji and our Guruji Sunil Dhamija ji once again. And with this, over to Gupta ji. Thank you, Rajesh ji. First of all, my thanks to the Pusa Road Study Circle for inviting me today amongst you for deliberating on a very important topic, something which is very close to my heart, FEMA. Of course, I should say that we have a very limited time, and as I was discussing with Rajesh bhai that the time required for FEMA maybe even one day is less. So I'll try to give you an overview of the subject, and then at last we'll try to take up all the questions you have relating to FEMA. I'll try to answer all of them to the best possible manner I can do. And Rajesh ji ने मुझे बताया सुनील धमीजा जी हैं, so he is also an expert on FEMA. So मेरे लिए एक फायदा है कि I have an expert person along with me who can always contribute, who can always guide me here कि अगर कहीं पे मैं गलती करता हूँ सर. So without wasting much time, Rajesh, shall I start? Yes, sir, boss. तो मैं एक पीपीटी है मेरी, मैं उसको शेयर करता हूँ. जी सर. Sir, is it visible, sir? Yes, sir. तो सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा सर, जनरली मैंने क्या देखा है सर, बहुत से हमारे मेंबर्स को फील होता है कि सर फेमा मेरे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है. बट ओवर द इयर्स ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव सीन इज दैट पहले ऐसा होता था कि फेमा किसी को एप्लीकेबल होता था. आज की डेट में हम सबके पास क्लाइंट्स हैं जो कहीं पे फॉरेन से कनेक्टेड हैं, या कुछ ऐसे चीजें हैं जो हो सकता है हम जब हम डिस्कस करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि फेमा हमारे को बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर एप्लीकेबल है जो शायद हम रियलाइज नहीं करते, और हो सकता है उस वजह से कई बार हम कुछ चीजों को छोड़ भी देते हो जिसकी हमारे को कंप्लायंस करने की जरूरत है. तो आई ट्राई फ्रॉम माई साइड कि हम कुछ चीजों को एटलीस्ट बेसिक चीजों को हम कवर करें जो हमारे लिए यूजफुल होंगी, एंड देन विल ऑफ कोर्स एट द लास्ट विल टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स सो दैट जो हम मैक्सिमम इस चीज को कवर कर सके विद इन दी लिमिटेड टाइम वी हैव, वो ट्राई करेंगे. तो सर जब हम फेमा की बात करते हैं तो इसमें ऑफ कोर्स फेमा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. देन अगर मुझे फेमा को समझना है, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई फेमा का अगर मैं एक्ट की बात करूँ तो अनलाइक से दी इनकम टैक्स एक्ट जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो भी प्रैक्टिस के अंदर है, तो इनकम टैक्स की नियरली सभी प्रैक्टिस करते ही हैं, तो वो तो बहुत बड़ा एक्ट है सर. हर एक साल हम एक किताब खरीद लेते हैं, जो नया एक्ट आता है वो मोटा सा एक किताब होती है. पर फेमा सर काफी हद तक जो है स्टेबल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आते एक्ट के अंदर. और अगर मैं एक्ट को देखूं तो एक्ट भी कोई खास नहीं है, कोई 14-15 पेज का सारा एक्ट है. अगर आप उसको थोड़ा बड़ा सा लिख देंगे तो हो सकता है कि वो 20 पेज में आ जाए, पर इतना ही है. पर एक्चुअली में फेमा की गाइडलाइंस जो है वो सिर्फ एक्ट से फ्लो नहीं करती. एक्ट एक्चुअली
सिर्फ बेसिक गाइडलाइंस देता है, बेसिक प्रिंसिपल्स देता है। जो डिटेल गाइडलाइंस है एक्ट की, वो एक्चुअली आती है, इसके अंदर रूल्स आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, फिर रेगुलेशंस आते हैं जो आरबीआई बनाती है, फिर उसके बाद उनके आते हैं मास्टर डायरेक्शंस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, और एपीडीआर सीरीज ऑफ सर्कुलर्स आते हैं जो आरबीआई इशू करती है टू एक्चुअली एक्सप्लेन दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। अभी मैं देख रहा था किसने लिखा कि भाई व्हाट कैन बी अ गुड स्टडी मटेरियल फॉर फेमा। So I think the one of the best way to understand FEMA would be go through the master direction issued by the Reserve Bank of India, which would help you in understanding at least a good amount of FEMA, the relevant provisions of FEMA, the flow of the provisions. तो वो एक अच्छा मटेरियल हो सकता है। फिर जब हम फेमा की बात करते हैं तो कुछ गाइडलाइंस जो डीजीएफटी इशू करती है, वो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर हम इस एरिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो दो वो फेमा के से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू नहीं करते, बट डीजीएफटी गाइडलाइंस में समटाइम्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। देन फिडाई इसमें इंपॉर्टेंट आती है सर, स्पेशली अगर आप बैंक ऑडिट के रेलिवेंस से देखें। व्हाट इज फिडाई? तो फिडाई सर एक है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है सर। ये बेसिकली उन सब बैंक्स जो इंडिया में फॉरेक्स में डील करते हैं, उन सब का एक तरह का एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कुछ गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं विच आर रेलिवेंट फ्रॉम दी साइड ऑफ अ बैंक व्हेन दे आर ऑपरेटिंग इन दी फॉरेक्स एरिया। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो हमारे को अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स बैंक को फॉलो करनी होती हैं क्योंकि वो पार्ट है फिडाई के, और वो उस गाइडलाइंस को एक साथ मैट के ही बनाते हैं, तो इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं। और क्योंकि बहुत सी चीजों के लिए हमारे को वेदर आप देखेंगे आगे आगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैंक से के थ्रू ही जाते हैं ट्रांजेक्शंस, तो इसलिए जो गाइडलाइंस बैंक को एप्लीकेबल है वो हम आपको कई बार समझनी जरूरी है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ वी कैन गो थ्रू दी गाइडलाइंस। उसके बाद आईसीसी आता है सर इसके अंदर। आईसीसी क्या है सर? एक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सर, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में आईसीसी कह देता हूँ, ठीक है। इसको क्रिकेट से आप मत जोड़ लीजिएगा सर, क्रिकेट के अंदर भी आईसीसी है, और आई नो अभी हमने टेस्ट मैच भी जीता है तो हम हो सकता है जोश में हो इसको क्रिकेट को लेके, पर इसका क्रिकेट से कोई रेलिवेंस नहीं है। तो इट इज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं अगेन सर, पर ये गाइडलाइंस जो है, चाहे वो फिडाई ने दी है चाहे आईसीसी ने दी है, ये गाइडलाइंस जो है सर ये लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे इनको कोई लॉ बाइंड करता है कि मुझे गाइडलाइंस फॉलो ही करनी पड़ेगी। दिस इज वॉलेंट्री गाइडलाइंस, बट इनका रेलिवेंस बहुत है इंडिया के अगर मैं एस्पेक्ट्स में देखूं। जैसे इन्होंने क्या गाइडलाइंस दी हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो इन्होंने दिए हैं, अगर आप फॉलो करना चाहें तो बैंक इनको कर सकता है। ये कुछ 6 मैंने रूल्स इसमें मेंशन किए हैं। ऑफ कोर्स जब हम बैंक ऑडिट करते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल रूल नंबर 2 इफ यू सी यूनिफॉर्म्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यूसीपीडीसी 600, तो ये एप्लीकेबल होता है लेटर ऑफ क्रेडिट को, ठीक है, एलसी जो बैंक इशू करता है। तो मैं सर काफी मैंने फॉरेक्स ब्रांचेस का ऑडिट किया, काफी ह्यूज फॉरेक्स ब्रांचेस का मैंने ऑडिट किया हुआ है, कॉन्क्रीट ऑडिट भी किए हुए हैं। तो आई कैन टेल यू सर मैंने हजारों एलसीज देख चुका हूँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोर देन से अराउंड 10 to 15 ईयर्स मुझे हो चुका है फॉरेक्स एरिया के अंदर प्रैक्टिस करते हुए। तो 100% ऑफ देम आर इशूड अंडर यूसीपीडीसी 600। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इन गाइडलाइंस की, और कितना वेल रिकॉग्नाइज है ये गाइडलाइंस। रेदर अगर आप मास्टर सर्कुलर देखें इंपोर्ट के ऊपर जो आरबीआई का है, वो भी यूसीपीडीसी 600 की बात करता है और एडवाइस करता है बैंक्स को कि आप इसको फॉलो करें। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको दी हैं जो एक गुड स्टडी मटेरियल है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस एरिया, हु वांट्स टू प्रैक्टिस इन दिस एरिया, जिससे आपको एक अच्छा रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा और आपको एक अच्छा ज्ञान हो सकता है। देखिए ऑफ कोर्स सुनील जी यहाँ पे है, और जैसे मुझे पता चला कि जी वो एक्सपर्ट हैं, तो वो भी एग्री करेंगे सर, एक्सपर्टीज तो हमेशा डेवलप होती है काम करके। नॉलेज आप गेन कर सकते हैं पढ़ के, पर एक्सपर्टीज आपको हमेशा मिलती है जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज जरूर मिलेगी। ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू डू सम वर्क इन दैट एरिया, चाहे किसी के साथ एसोसिएट हो, उससे आपकी ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज धीरे धीरे वो डेवलप होती जाती है, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब अगर मैं फेमा को बेसिकली बताने की कोशिश करूं, तो फेमा सर बड़ा छोटा सा एक्ट है। अगर इसके चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस उन्होंने बना रखे हैं, तो एक प्रीलिमिनरी चैप्टर है जिसके अंदर सेक्शन 2 आ जाता है, डेफिनेशंस आ जाती हैं बेसिकली। उसके बाद चैप्टर 2
और चैप्टर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज फार एज द गाइडलाइंस गोस। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो इन 2 चैप्टर्स के अंदर ही आ जाती है। चैप्टर 2 सेक्शन 3 4 5 6 7 8 9 तक है। इसमें ये बता देता है आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या है, कौन डील कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज में, एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया कैसे होगा, इसके अंदर रियलाइजेशन कैसे करनी है आपने। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो जहां पे भी आप कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो जब आप लेके जाना चाहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं रेगुलेशंस स्ट्रिक्टर होंगे। जहां पे आप लेके आ रहे होंगे इंडिया के अंदर, तो वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे क्योंकि कंजर्वेशन की बात है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है, ये ऑथराइज पर्सन की बात करता है। ऑथराइज पर्सन क्या है, उसको हम ऑथराइज डीलर्स भी कह देते हैं कई बार, तो वो क्या है उसको हम समझ लेंगे। सेक्शन जो चैप्टर 4 है, इसके अंदर बेसिकली 4 सेक्शन है। ये कॉन्ट्रावेंशन की बात करता है और पेनल्टीज की बात करता है, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर 2 जो हमने चैप्टर्स देखे 2 और 3 के अंदर कोई वॉलेशन करेंगे, तो हमारे को चैप्टर 4 की शक्ल देखनी पड़ेगी। हम नहीं देखना चाहते, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन या पेनल्टीज नहीं करना चाहते, बट अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारे को देखना पड़ेगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स चैप्टर 5 है जो एजुकेशन और अपील की बात करता है, तो वो किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। और चैप्टर 6 जो है, जिसको लोग काफी डरते हैं जिसके नाम से, जिसको डायरेक्टरेट और इन्फोर्समेंट डीओई कहते हैं, ईडी भी कह देते हैं लोग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कह देते हैं, तो ये उसकी बात करता है। क्योंकि बेसिकली जब फेमा के अंदर कोई भी वायलेशन होती है सर, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो डीओई के पास ही जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ही जाती है। तो उसके बारे में ये गाइडलाइंस है। तो अगर आप देखेंगे रियली तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है। चैप्टर 7 मिसलेनियस है, तो वो कोई खास चीजें नहीं है उसके अंदर। अगर आप चैप्टर 2 डेफिनेशंस सेक्शन 2 के अंदर जो है चैप्टर इसमें 2 और चैप्टर 3 अगर आप पढ़ लें, तो आई एम श्योर कि आपने एक बेसिकली फेमा का आपने गाइडलाइंस को पढ़ लिया। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट कंप्लीट, दीज गिव ओनली द बेसिक गाइडलाइंस टू यू, बेसिक प्रिंसिपल्स टू यू। You will have to go through the guidelines given by the Reserve Bank, of course the rules, the regulations and the guidelines given by the Reserve Bank. तो गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक की है, ये मैंने ट्राई किया कि भाई कौन कौन सी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप रीड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कौन कौन से गाइडलाइंस को आपको, मास्टर सर्कुलर्स को, मास्टर डायरेक्शंस को आपको रीड करने की जरूरत है। तो पहले अगर मैं बात करूं फेमा के अंदर सर, देखिए 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली, जिसको हम कहते हैं, एक कहते हैं हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसको नॉन टेक्निकल वे में एक लेमैन की तरह समझाने की कोशिश करूं, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो है जो आपके बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने लोन लिया, लोन दिया, आपने कोई एसेट एक्वायर किया, आपने एसेट कोई बेचा इंडिया के अंदर, एसेट इंडिया से बाहर एक्वायर किया, वो सब जो है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है। और इसके अलावा जो ट्रांजेक्शंस है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में आते हैं, जो बेसिकली आपके पीएनएल से रिलेशन में है, कि आपने कोई इंपोर्ट ट्रांजेक्शन किया, आपने कोई एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन किया, कोई आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की, वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो क्या क्या गाइडलाइंस आती हैं, तो एक आती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ट्रेड क्रेडिट्स एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस। तो सर बेसिकली क्या है, ये बात करता है ईसीबी की, कि आपने लोन लिया, इंडिया से बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हैं, इंडियन रुपीज में भी ले सकते हैं। अगर इस गाइडलाइंस को आपने देखना है, तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की गाइडलाइंस आती हैं। ये इसके लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर्स हैं जो मैंने इसमें लिखा है। ऑफ कोर्स ये मैं राजेश जी को भेज भी दूंगा प्रेजेंटेशन इसमें, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, यू विल बी एबल टू सी द गाइडलाइंस, यू कैन स्टोर द गाइडलाइंस विद यू। उसी तरीके से एक आता है बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीज बिटवीन पर्सन रेसिडेंट इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस और पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये 2 रेलिवेंट गाइडलाइंस है जहां पे हम लेंडिंग की बात करते हैं, ठीक है, लोन्स लेने या देने की बात करते हैं। तो ये 2 मास्टर डायरेक्शंस हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। उसके बाद एक आती है सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इन जॉइंट वेंचर्स होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड। तो ये बेसिकली बात करता है कि अगर इंडियंस इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी बिजनेस एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो किस तरीके से वो गाइडलाइंस इसके अंदर है। तो ये जो मास्टर डायरेक्शन है, ये बेसिकली आपको उस गाइडलाइंस के बारे में बताता है। देन इसके बाद आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिवर्स है कि कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन,
कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसकी क्या गाइडलाइंस है। सर कुछ दिन पहले तक तो हम कहते थे, 2019 से पहले हम कहते थे कि भाई ये गाइडलाइंस ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2019 में एक मेजर चेंज आया इसके अंदर कि दी पावर टू मेक दीज गाइडलाइंस was taken away from the Reserve Bank of India and the central government vested with themselves all these powers। तो उसके लिए फिर उन्होंने निकाला सर, अगर आप पॉइंट 5 देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 आया सर। तो अब जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस है, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है थ्रू अ गेजेट नोटिफिकेशन। फर्स्ट इट केम इन 2019, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। सिर्फ दो एस्पेक्ट्स के लिए आपको अभी भी आरबीआई को उन्होंने पावर दे रखी है, विच इज इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग एंड इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन। इन दो चीजों के लिए सिर्फ आरबीआई अब एफडीआई के रिलेशन में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में वो गाइडलाइंस निकालेगी, और सब एस्पेक्ट्स के लिए अब जो गाइडलाइंस है वो रिजर्व बैंक के पास नहीं है पावर, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली है। ठीक है, तो इसके लिए जो रिजर्व बैंक के पास पावर है फॉर रिपोर्टिंग एंड फॉर वैल्यूएशन, तो उसके लिए उन्होंने निकाला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। ठीक है, तो ये दो चीजें उन्होंने इसके अंदर हमारे को दी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज एफडीआई की जब हम बात करते हैं, आप आरबीआई की साइट पे जाएंगे, आपको मास्टर डायरेक्शन दिखेगा वहां पे एफडीआई का, but that is not relevant now because practically that power has been taken away from the Reserve Bank of India and has now been lying with the central government। उसके बाद एक आता है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, एंड एक आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय फॉरेन एंटिटीज। तो एफडीआई तो हो गया कि जहां पे आप शेयर एक्वायर कर रहे हैं या किसी एलएलपी के बिजनेस के अंदर आप पार्टनरशिप ले रहे हैं और अगर आप शेयर्स एक्वायर नहीं कर रहे, किसी एलएलपी के अंदर बिजनेस एक्वायर नहीं कर रहे, आप कोई अपना ऑफिस खोल रहे हैं, तो वो गाइडलाइंस आ जाती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस। ब्रांच ऑफिस और लाइजन ऑफिस के अंदर बेसिकली डिफरेंस जो है वो, अगर हमारे को समय मिला तो हम देखेंगे भी क्या डिफरेंस होता है, बट बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि क्या एक्टिविटी आपको परमिटेड है करना। तो लाइजन ऑफिस को जो एक्टिविटी है बेसिकली लाइजनिंग से रिलेशन में है, वो परचेज सेल नहीं कर सकती, वो कोई प्रॉफिट एक्टिविटी अंडरटेक नहीं कर सकती। ठीक है, और ब्रांच ऑफिस जो परचेज सेल वगैरह भी कर सकता है, प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और ब्रांच ऑफिस को हम बेसिकली जो कह रहे थे ना, फॉरेन कंपनीज का जो ब्रांच ऑफिस है इंडिया के अंदर, फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो बेसिकली यानी वो उनका ब्रांच ऑफिस इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ऑफ कोर्स उनको आरबीआई की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है और उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है आरओसी के साथ भी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ भी, और उसकी भी गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी पड़ती है। And then project office, that is basically for any person who has come for a project work in India, तो वो they can open a project office or any other office for that matter। वो सब गाइडलाइंस इस नोटिफिकेशन के थ्रू, इस मास्टर डायरेक्शन के थ्रू वो आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आती है डिपॉजिटल अकाउंट्स की, कि भाई अगर आपने कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई फॉरेन नेशनल है, इंडिया के अंदर अकाउंट्स खुलना चाहता है, एनआरओ एनआरई अकाउंट्स हम सब ने सुने होंगे, तो वो उस सब की गाइडलाइंस यहाँ पे आती है। इसमें एनआरओ आता है, एनआरई आता है, एफसीएनआर आता है, ईईएफसी आता है, तो इस तरह के कुछ अकाउंट्स हैं। कोशिश करूंगा कि आज हम एटलीस्ट ब्रॉडली हम इन अकाउंट्स को जरूर समझें, क्योंकि ये बेसिक है मेरे हिसाब से फेमा का, तो हमें ये समझना जरूरी है। फिर देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों आ जाते हैं। अदर रेमिटेंसेस, कि भाई इंपोर्ट के अलावा, कि आप कोई गुड्स मंगवा रहे हैं, सर्विसेज मंगवा रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई आप बाहर रेमिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या गाइडलाइंस है। एक है स्कीम जिसको हम कहते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो इस स्कीम को हम जरूर समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आज हमें फेमा को समझना है तो ये स्कीम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फॉर अदर रेमिटेंसेज अदर देन इंपोर्ट के केस में, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आज हम इसको जरूर डिस्कस करें। फिर रेमिटेंस ऑफ एसेट्स एंड कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं। देन ये मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम्स हैं, एमटीएसएस, ये बेसिकली रेफर करती है जो पेपाल वगैरह है, कि भाई आप पेपाल के थ्रू पैसा इंडिया से बाहर भेज सकते हैं या इंडिया से बाहर से रिसीव कर सकते हैं,
तो वो MTSS के थ्रू कवर होता है। इंश्योरेंस ये बेसिकली कवर करता है कि सपोज कीजिए मैंने इंश्योरेंस इंडिया से बाहर से किसी इंश्योरेंस कंपनी से लिया था, क्या मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या मैं उसके प्रीमियम पे कर सकता हूँ, उस सब की गाइडलाइंस इसमें आ जाती है। देन ओपनिंग एंड मेंटेनेंस और रुपी फॉरेन करेंसी वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउसेस। तो कि ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो क्या होता है, हम कोशिश करेंगे कि आज हम डिस्कस करें एटलीस्ट, कि ताकि हमको ब्रॉड चीजें जरूर पता चले, कि जब हम इन एरियाज को पढ़ें तो हमें बेसिक चीजें जरूर क्लियर हो इन सब चीजों के अंदर। देन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज, तो मनी चेंजिंग क्या है, इसका क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा हम समझेंगे आगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसका इन्होंने अलग से एक मास्टर डायरेक्शन निकाला हुआ है कि कैसे रिपोर्टिंग होगी, क्या उसका फॉर्म होगा, कितने टाइम में आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होने हैं, उस सब की गाइडलाइंस जो आपको मिलेंगी वो इस रिपोर्टिंग अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर मिलेगी। देन कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन अंडर फेमा 1999। तो सर ये क्या है कि आपने भाई सब गलती कर दी, अब आपको ऑफेंस आपसे हो गया कोई लॉ के अंदर, अब या तो आप पेनल्टी बियर करें, या आपके पास एक ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी आप कुछ केसेस को छोड़ के, एंड स्पेशली वो कुछ केसेस कौन से हैं, जैसे कि जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अलावा उसके मोस्ट ऑफ दी ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड, और कंपाउंडिंग के लिए फिर कुछ प्रोसेस है, तो वो शॉर्ट में हम समझेंगे कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपाउंडिंग करवा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि हम एक पेनल्टी नहीं दे रहे, हम RBI के पास गए, एक प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है, और हमने उनको खुद बताया कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, ये ऑफेंस हो गया हमसे, और आप इसको कंपाउंड कर दीजिए। तो आफ्टर गोइंग थ्रू द एप्लीकेशन एंड चेकिंग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, दे डिसाइड कि भाई ठीक है आप इतनी कंपाउंडिंग फीस पे कर दीजिए, and we will compound your offense, so no penal action would be initiated against you for the same offense। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये 20 मास्टर डायरेक्शंस हैं। एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड गेन नॉलेज इन द फेमा एरिया, आई बिलीव कि ये 20 अगर हम गाइडलाइंस को पढ़ लें तो आई एम श्योर कि हम बहुत अच्छा एक हमारा एक नॉलेज हो जाएगी फेमा के अंदर। ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर कि नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वुड हेल्प अस इन डेवलपिंग दैट एक्सपर्टीज which would be very essential in case we want to practice in this area। चलिए सर, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है सर जिसको मैं लोगों को समझाना पसंद करता हूँ। जैसे अब कई बार लोग मेरे से पूछते हैं सर, एक तो बैंक होता है, हम बैंक से भी फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, बैंक से के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कुछ हम डीलर्स देखते हैं, बड़े डीलर्स हैं, जैसे कि भाई थॉमस कुक है, इस तरह के डीलर्स हैं, बहुत बड़े डीलर्स हैं। कुछ हम देखते हैं कि जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो CP जैसी जगह है, करोल बाग जैसी जगह है, जहाँ पे बहुत सारे डीलर्स आपको दिखते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जिसके अंदर वो बैठे होते हैं और उन्होंने लिखा होता है कि जी वी आर एन ऑथराइज मनी चेंजर। तो वो कौन है, क्या फर्क है, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, क्या मैं जो ट्रांजेक्शन बैंक के साथ कर सकता हूँ क्या इनके साथ भी वो ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे को समझना है सर कि फॉरेक्स डीलर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसमें जो फेमा के अंदर ना सर उन्होंने जो डीलर्स बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, कि आज अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को फॉरेक्स के अंदर डील करना है अदर देन फॉर माय ओन यूज, कि भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे फॉरेक्स की पेमेंट करनी है, वो तो एक बात हो गई अलग। और मैं सोचूं कि भाई राजेश भाई को कहीं घूमने जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ भाई मैं फॉरेन एक्सचेंज लेना शुरू कर देता हूँ कि सुनील जी कहीं से घूम के आए तो उन्होंने मेरे को भेज दी, और राजेश भाई को कहीं जाना है तो वो मेरे से खरीद ले, और बीच में हो सकता है कि जी मैं 1 रुपया बचा लूं, कुछ कमा लूं। तो अगर वो मुझे करना है तो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता कि जी मैं सोच लूं कि भाई ये भी जैसे कोई दुकान होती है वैसे मैं एक दुकान खोल लूं और ये परचेज सेल शुरू कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आई नीड टू हैव अ लाइसेंस, and of course that license would be issued by the Reserve Bank of India, right? But what the issue is not one category of a license, there is 4 categories of licensing। जैसे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सर। और इस कैटेगरी के अंदर कौन आता है सर, आपके जितने बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, ये सारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, तो इन जो डीलर्स की कैटेगरी है ना सर, इनके बीच में जो डिवीजन है, बेसिकली वो डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट पावर दे हैव, पावर टू डू अ ट्रांजेक्शन और नॉट टू डू अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो किस तरह के ट्रांजेक्शंस वो कर सकते हैं, और दूसरी कि कहीं कहीं पे अगर आप फेमा में देखेंगे तो जो पावर है डेलीगेट जो की गई है वो की गई है ऑथराइज डीलर्स को, जो
पावर अदरवाइज रूल्स के अंदर आरबीआई के पास है, उन्होंने कुछ केसेस में वो पावर डेलीगेट कर दी है ऑथराइज डीलर्स को, इन एडीज को, फॉरेक्स डीलर्स को, कि भाई आप हमारे बिहाफ पे ये पावर को यूज कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम डेलीगेशन ऑफ पावर हुई है वो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 को हुई है। जो वो कर सकते हैं शायद कोई और डीलर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी एंड बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया। अच्छा, अब इस बैंक्स के अंदर भी सर 3 कैटेगरीज ऑफ ब्रांचेस होती हैं। अब जैसे अगर मैं किसी बैंक का ऑडिट करने जा रहा हूँ स्पेशली, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ब्रांच जो है ये फॉरेक्स के अंदर डील कर सकती है या नहीं डील कर सकती? तो जनरली हम मुझसे पूछेंगे भाई साहब आप ऑथराइज हो क्या फॉरेक्स में डील करने के लिए? ब्रांच मैनेजर से पूछेंगे। अब बेटर वे वुड बी हम उससे पूछे कि सर आप कौन सी कैटेगरी के ब्रांच हैं? आप ए कैटेगरी ब्रांच हैं, आप बी कैटेगरी ब्रांच है, या आप एक सी कैटेगरी ब्रांच है? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है सर, सी कैटेगरी ब्रांच अगर वो कहता है कि मैं सर सी कैटेगरी ब्रांच हूं, इसका मतलब वो नॉन फॉरेक्स ब्रांच है, वो फॉरेक्स के अंदर डील नहीं कर सकते, ऑथराइज नहीं है फॉर डीलिंग इनटू फॉरेक्स एरिया। अगर वो कहता है कि सर मैं कैटेगरी बी हूं या मैं हूं कैटेगरी ए ब्रांच, तो ये दोनों ही फॉरेक्स ब्रांचेस हैं, दोनों ही फॉरेक्स के अंदर डील कर सकते हैं। अब कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में क्या डिफरेंस है, वो शायद मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा जब मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊंगा कि भाई कैटेगरी ए और बी में क्या डिफरेंस होता है। पर आप ये मान के चलिए कि अगर आप चाहे कैटेगरी ए ब्रांच में है चाहे कैटेगरी बी ब्रांच में है, आपको दोनों ही केस के अंदर फॉरेक्स का आपको एरिया चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2। ये जो कैटेगरी है सर, ये बेसिकली वो डीलर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, पर जो बैंक की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जैसे थॉमस कुक है। ठीक है, ये जो है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 में आते हैं। ये बैंक्स नहीं है तो इनको कैटेगरी 1 का लाइसेंस नहीं मिलता है, कैटेगरी 2 में रहना पड़ता है। इनकी पावर लिमिटेड है एज टू व्हाट ट्रांजेक्शंस दे आर अलाउड टू डू। तो ये ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते। कौन से नहीं कर सकते सर? जैसे अगर मैं किसी से एफडीआई मंगवा रहा हूँ, मेरी इंडिया में कंपनी है और मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाना चाहता हूँ, तो ये कैटेगरी 2 डीलर हैंडल नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा, उसको अलाउड नहीं है ऐसे ट्रांजेक्शन को डील। ठीक है, देन आता है कैटेगरी 3 डीलर्स आते हैं सर। ये एक स्पेशल कैटेगरी है सर फीमा के अंदर। ये कैटेगरी ऑफ डीलर्स क्या है सर कि इनका जो काम है वो इस तरीके का है कि इनको रोज फेमा के पर्पस के लिए इनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करना पड़ता है। तो रेदर देन रिलाइंग अपॉन अनदर डीलर, दे हैव बीन गिवन अ स्पेशल कैटेगरी लाइसेंस व्हिच इज कैटेगरी 3। इनको इसलिए दूसरी कैटेगरी ऑफ डीलर के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, पर ये अदरवाइज कस्टमर से डील नहीं करते फॉर देयर फॉरेक्स नीड। तो मतलब अगर आप सपोज कीजिए मैंने कोई इंपोर्ट किया है और मुझे इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, तो मैं ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 के पास नहीं जा सकता कि भाई मेरे को आप पेमेंट कर दो ये इंपोर्ट की। इसका एग्जांपल कौन सा है सर? इसका एग्जांपल है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 में फॉल करता है। देन लास्ट कैटेगरी है सर जिसको हम कहते हैं फुल फ्लैज मनी चेंजर, या जिसको मैंने एग्जांपल दिया कि भाई जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई हम कभी कनॉट प्लेस गए, कभी करोल बाग गए, स्पेशली यहाँ पे ज्यादा डीलर्स हैं इस तरह के जिनके शॉप के बाहर लिखा होगा वी आर ऑथराइज मनी चेंजर। तो यानी ये है फुल फ्लेज मनी चेंजर का लाइसेंस लेके। इनकी पावर सबसे लिमिटेड है सर। दे कैन ओनली डील विद फॉरेन करेंसी नोट्स, ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवल कार्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवल एंड ऑल। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर भी डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकी पावर सबसे लिमिटेड है। ओके, तो आप सपोज कीजिए मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो मैं एफएफएमसी के पास भी जा सकता हूँ, मैं कैटेगरी 2 के पास भी जा सकता हूँ, मैं कैटेगरी 1 के पास भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर मुझे इंपोर्ट ट्रांजेक्शन करना है तो मुझे कैटेगरी 1 बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। मैं एफएफएमसी को जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि भाई मेरी इंपोर्ट की आप पेमेंट कर दीजिए। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मुझे चेक करना है कि भाई मैं जिससे के साथ डील कर रहा हूँ वो किस कैटेगरी का डीलर है, तो इसकी एक अपडेटेड लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एनीबडी कैन गो लुक एट द वेबसाइट एंड सी कि भाई कोई ऑथराइज है कि नहीं है, और है तो किस कैटेगरी में ऑथराइज। एक बड़ी छोटी सी चीज और है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर कि कई बार हम जैसे होटल में जाते हैं स्पेशली, तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे भी लिखा होता है कि बाय फॉरेन एक्सचेंज,
राइट। और जितने आपके 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं उसमें तो आपको जनरली दिखेगा कि ट्रैवल एक अलग से उन्होंने बंदा बिठा रखा होता है, एक पर्सन को बिठा रखा होता है जो ट्रैवल नीड्स के लिए होता है, ट्रैवल डेस्क कह देते हैं उसको। तो वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज खरीद के आपको करेंसी भी दे देता है इंडिया के अंदर। तो वो क्या है, क्या वो फुल फ्लेज मनी चेंजर है? तो सर जनरली वो क्या है, एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो वो जनरली क्या होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है किसी ऑथराइज डीलर का। तो उसको जो लाइसेंस है वो उस ऑथराइज डीलर से लेता है, उसके जो ट्रांजेक्शन है वो उस ऑथराइज डीलर को इंश्योर करने हैं कि वो कंप्लायंस में वो लॉ के। तो उसको क्या पावर दी गई है, उसको पावर दी गई है टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज एंड गिव बैक इन आईएनआर। यानी वो जो पर्सन बाहर से आए हैं, हो सकता है वो फॉरेन एक्सचेंज ही लेके आए हो, तो उनकी वो फॉरेन एक्सचेंज लेके और उनको आईएनआर दे सकता है, इंडियन करेंसी दे सकता है, बट वो सेल नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। तो कभी आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने जो रेट्स दिए होते हैं ना वहां पे फॉरेन करेंसी के, वो सिर्फ सेल के दिए होते हैं, जहां पे वो आप उनको फॉरेन करेंसी सेल कर सकते हैं। कभी वो बाय के रेट नहीं देते, इसलिए क्योंकि वो ऑथराइज ही नहीं है किसी को फॉरेन करेंसी सेल करने के लिए। ठीक है। दे कैन ओनली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम समबडी एंड गिव इट इन फॉर्म ऑफ आईएनआर। और जो वो फॉरेन करेंसी खरीदते हैं इस तरीके से, जिस डीलर ने उनको अपॉइंट किया होता है उसके 7 डेज के अंदर उसको उनको सरेंडर करना होता है उस करेंसी। ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया था कि से अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में आता है, हो सकता है वो फॉरेन करेंसी लेके आया हो, तो ही डज नॉट नीड टू गो एंड फाइंड अ डीलर। ही कैन सिटिंग इन हिज होटल लॉबी, राइट, he can convert that foreign currency into आईना for the purpose of spending in India। तो इसलिए ये फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट बिल्ट इन किया गया था। ठीक है सर, आई होप आई एम क्लियर। मैं क्वेश्चन आंसर अभी तक देखे नहीं है। Only 3 question in chat box, sir. अच्छा, कुछ ऐसा करेंगे, क्वेश्चंस बाद में लेते हैं, क्योंकि जैसे हाँ, किसी yes, ने sir. एक्सपोर्ट का पूछा है, किसी ने एफडीआई का पूछा है, जी 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 सर, जी तो सर. थोड़ी देर में लेते हैं क्वेश्चंस। विल ट्राई एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सर। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो एक मुझे लगता है एक बड़ा बेसिक एरिया जो हम सबके बहुत यूटिलिटी में आएगा फेमा की जब हम बात करें, तो मैंने सोचा कि मैं सेल ऑफ फॉरेन करेंसी की बात करूं। कि जैसे अगर हम ट्रैवल के लिए भी अगर हम जाते हैं कहीं पे, तो भाई मेरी क्या एंटाइटलमेंट है, कितनी मैं खरीद सकता हूँ, अगर वो बच जाती है तो मैं कितनी वापसी ला सकता हूँ, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो और या मैं अगर कोई मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितने में पैसे खर्च कर सकता हूँ फॉरेन करेंसी में। ठीक है, मेरी क्या रेगुलेशंस है उसके बारे में। तो मैंने कहा सोचा कि हम रेमिटेंसेस की, ट्रैवल की जरूर बात कर लें, जो हम मुझे लगता है कि हम सबके ऊपर आज की डेट में एप्लीकेबल। तो सर इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम फेमा में देखें तो सबसे ऊपर है फेमा एक्ट, उसके नीचे आते हैं रूल्स, उसके नीचे आते हैं रेगुलेशंस, और उसके बाद फिर आती है नोटिफिकेशंस या मास्टर डायरेक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ईपीडीआर सीरीज ऑफ सर्कुलर्स आते हैं बेसिकली। और उसके बाद उन आरबीआई के अंदर एफएक्यू भी आता है, उनकी साइट पे अगर आप जाएंगे एफएक्यू है। एफएक्यू डज नॉट हैव एनी लीगल बाइंडिंग, इट इज ओनली द आरबीआई ट्राइंग टू क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो अगर फेमा के बाद मैं देखूं, तो अगर मैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं, तो उसके अंदर एक आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रूल 2000। दिस इज द रूल्स व्हिच इज एप्लीकेबल इन केस आई एम डूइंग अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जैसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है कि भाई मैं ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ, मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, एजुकेशन के लिए मुझे करेंसी चाहिए, या किसी को कोई मेडिकल नीड पड़ी, वो इंडिया से बाहर जाके कोई इलाज करवा रहा है, तो मेडिकल के केस में क्या होगा, या हो सकता है मैं किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा। तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, तो उसका एक रूल्स है, रूल्स 2000 कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स। तो इसके अंदर सर 3 शेड्यूल्स हैं, ये समझ लीजिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। ठीक है। शेड्यूल 1 है प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस, जो आप कर ही नहीं सकते, लॉ के अंदर आपको परमिशन नहीं है ये ट्रांजेक्शंस करने की। अगर आपने ये ट्रांजेक्शन किया, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द एक्ट, इसको आरबीआई भी कंडोन नहीं कर सकता, इसके अंदर आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये आप कंपाउंड करवाएंगे। शेड्यूल 2 वो ट्रांजेक्शंस हैं जो आप कर तो सकते हैं, पर करने से पहले इसमें एक अप्रूवल चाहिए होती है किसी मिनिस्ट्री की। ठीक है,
तो हम समझेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर हमारे को अप्रूवल चाहिए होती है बिफोर वी कैन डू अ ट्रांजेक्शन. टू द एक्सटेंट द परमिशन इज गिवन टू यू टू डू द ट्रांजेक्शन यू कैन डू. इफ दे डू नॉट अलाउ यू टू डू द ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट. शेड्यूल 3 वो ट्रांजेक्शंस हैं जो परमिटेड है, जो आप कर सकते हैं. उसके अंदर एक मैक्सिमम कैप हो सकती है अप टू विच यू कैन डू इट, और पर से यू आर परमिटेड टू डू. कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है करने के ऊपर पर से. ठीक है. और फिर एक स्कीम की हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS. तो वो हम समझेंगे कि वो स्कीम क्या है बेसिकली. ठीक है. ओके. दिस इज प्रोहिबिटेड लेस. अगर आप ये ट्रांजेक्शन देखेंगे ये प्रोहिबिटेड में है, इसकी कोई अप्रूवल पॉसिबल नहीं है. अगर आप इसमें से कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो RBI भी इन ट्रांजेक्शन को अप्रूव नहीं कर सकता. ना वो करेगा ना वो कर सकता लीगली स्पीकिंग, क्योंकि ये रूल के अंदर ही दे रखा है कि ये प्रोहिबिटेड है. ठीक है. तो रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा, रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड प्रिस्क्राइब मैगजीन, फुटबॉल पूल्स, स्वीपस्टेक्स एक्सेट्रा. ये सब चीजें हैं कुछ जो आप नहीं कर सकते, जिसके लिए कोई भी रेमिटेंस इंडिया से बाहर. उसके बाद आता है शेड्यूल 2 सर. शेड्यूल 2 में अगर आप देखें तो इसमें पर्पस ऑफ रेमिटेंस है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जिससे आपको अप्रूवल की जरूरत है. जैसे कल्चर टूर्स के लिए अगर आप रेमिटेंस करना चाहते हैं, बाहर फॉरेन एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी. ऐसी एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स PSU तो देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है. रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ बाइसिकल चार्टेड बाय अ PSU तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की है. इस तरीके से ये है. रेमिटेंस फॉर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों से चाहिए होती है. ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने दे रखी है. लेफ्ट हैंड साइड में पर्पस और राइट हैंड साइड में किस मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए. टू द एक्सटेंट दे अलाउ you can do the transaction. If they do not allow, you are not authorized to do a transaction. Then आता है शेड्यूल 3 आता है सर. अब शेड्यूल 3 की सर कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. जैसे शेड्यूल 1 मैंने आपको दिखाया, शेड्यूल 2 दिखाया, शेड्यूल 3 के ऐसी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में फॉल नहीं करता और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो शेड्यूल 3 में फॉल करता है. तो शेड्यूल 3 इज अ रेसिडुअल लिस्ट. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस you can do a current account transaction, they are per se permitted, right? Of course there is a maximum cap up to which you can do it. ऐसा नहीं है अनलिमिटेड कर सकते हैं. जनरली there is a cap up to which you can do it. तो वो हम कैप भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैप क्या है. ठीक है. पर से these transaction you can do. चलिए. तो हम अगर कैप की बात करें तो किस तरह के ट्रांजेक्शन है. जैसे प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान. तो नेपाल एंड भूटान से क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे को कि अगर मैं से घूमने जा रहा हूँ नेपाल या भूटान, तो मुझे क्यों वो अलाउ नहीं करना चाहते फॉरेन करेंसी. तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि नेपाल और भूटान में इंडियन रुपीस एक्सेप्टेबल. तो इसके लिए आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलती इन केस यू वांट टू ट्रैवल टू नेपाल और भूटान. ओके. देन गिफ्ट्स और डोनेशन मैं दे रहा हूँ किसी को, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन, maintenance of close relatives abroad, travel for business, conference, specialized trainings, meeting expenses for medical expenses abroad, attendant to a patient going abroad for medical treatment. पहला वाला पॉइंट था कि पेशेंट के लिए. सेकंड वाला पॉइंट था somebody who is going to with that patient for attending that patient there, studies abroad, any other current account transaction. तो ये सब वो current account transactions हैं जिसके लिए मैं रेमिटेंस कर सकता हूँ. तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे स्कीम कॉल्ड है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS इन शॉर्ट. ये स्कीम क्या है? तो ये स्कीम सर बहुत अच्छी है. एवरीबडी वुड लाइक टू गेट कवर्ड बाय दिस स्कीम इन इंडिया. क्या स्कीम है? तो ये स्कीम कहती है सर आपको 4 कंडीशंस पूरी करनी है इन केस यू वांट टू यूज दिस स्कीम, यू वांट टू गेट कवर्ड बाय दिस स्कीम. बड़ी सिंपल 4 कंडीशंस हैं. यू शुड बी एन इंडिविजुअल, 1. तो नॉन इंडिविजुअल्स आर नॉट कवर्ड, यानी HUF हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, LLPs हो गए, कंपनीज हो गए, वो इसमें कवर्ड नहीं है. ओनली इंडिविजुअल्स आर कवर्ड. यू शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया. तो नॉन रेसिडेंट्स कवर्ड नहीं है इसके अंदर. ठीक है. यू शुड हैव अ पैन नंबर. ठीक है.
पैन नंबर ही चाहिए सर। अगर पैन नंबर नहीं होता तो हम क्या देते हैं कि सर फॉर्म 60 दे दो, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहते हैं ना सर, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। या आधार नंबर दे देंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, आपको पैन नंबर ही चाहिए, ठीक है। एंड इन केस यू आर डूइंग अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो क्या है मैं अभी समझेंगे उसको। इन केस यू आर डूइंग अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट विद अ बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और अगर वो नहीं है तो आईटी रिटर्न दे सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं और दी लेटेस्ट पीरियड, ठीक है। तो दैट वुड सफाइस, ओके। तो ये 4 कंडीशंस है, राइट। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वुड हैव ऑलरेडी complied with all the conditions, so I would say congratulations, you are covered by this scheme. Now congratulations तो मैंने बोल दिया सर, तो नेचुरली अब ये भी समझाना पड़ेगा कि congratulations का तो उसका क्या फायदा है अगर मैं स्कीम में कवर्ड हो गया। तो इस स्कीम में कवर होने का ये बेनिफिट है सर, दिस स्कीम अलाउज यू टू रेमिट, आज की डेट में जो लिमिट है स्कीम में वो है USD 2,50,000, ठीक है। स्कीम में अलग अलग लिमिट्स नहीं है, आज की डेट में जो लिमिट है USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन। तो लिमिट है USD 2,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 2,50,000 USD की लिमिट अवेलेबल है। क्या पर्पस के लिए, किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है, ठीक है। और वो मिलती है पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन फॉर एनी परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप इसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। लिमिट क्या है, अप टू USD 2,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन, ठीक है। तो इस पर पर्सन के अंदर से माइनर भी आता है। तो इसके अंदर लिमिट जो है, से एक फैमिली की अगर हम बात करें तो हस्बैंड की अलग लिमिट है, वाइफ की अलग लिमिट है, और अगर उसके कोई बच्चे हैं, मेजर है तो नेचुरली उसकी होगी होगी, माइनर की भी इक्विवेलेंट लिमिट है जो एक मेजर इंडिविजुअल की होती है, ओके। और ये लिमिट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं सर, ये पर पर्पस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल के लिए भी 2,50,000 यूज कर सकता हूँ और फिर एजुकेशन के लिए भी कर सकता हूँ और फिर घूमने जाने के लिए भी यूज कर सकता हूँ और फिर मैं किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। दिस इज कंबाइंड फॉर ऑल पर्पसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो कुछ इस तरीके से समझाऊं कि इसे गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब आपका ये बैंक अकाउंट है, इसमें 1 अप्रैल को USD 2,50,000 आ गए, ठीक है सर। तो प्लीज उसकी चेकबुक मत मांग लीजिएगा क्योंकि ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक बैंक अकाउंट समझ लीजिए जिसमें USD 2,50,000 आ गए, जितना आप यूटिलाइज करते जा रहे हैं उतने से वो बैलेंस कम होता जा रहा है। ऑन 31st मार्च आपने यूज किया या नहीं किया, the balance at the close of 31st March would become 0 and on 1st April it would again become USD 2,50,000, right? So there is no carry over. अगर मैंने यूज नहीं किया इस साल तो ऐसा नहीं है कि अगले साल मैं डबल यूज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जितना मैंने यूज किया ठीक है, नहीं तो ऑन 31st March closing it will expire, on 1st April it will again become USD 2,50,000, okay। एंड अगर सपोज कीजिए मैं यूज कर रहा हूँ, बैलेंस कम होता जा रहा है, अब ऐसा कोई पॉइंट आया कि मेरे को यूज तो करना है पर बैलेंस नहीं है, तो मुझे RBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल बिफोर अमाउंट एक्सीडिंग USD 2,50,000 कैन बी अलाउड, ठीक है, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर RBI अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, इवन व्हेन आई ब्रीच USD 2,50,000, ओके। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो मैंने आपको बताया था, जैसे इस तरह के ट्रांजेक्शन ये सब आप कर ही सकते हैं USD 2,50,000 में। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज कीजिए यू लाइक शेयर्स ऑफ से एप्पल, आप एप्पल के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो क्या इंडिया में हम खरीद सकते हैं? तो नहीं खरीद सकते, उसका रीजन ये है कि इंडिया में वो लिस्टेड नहीं है। तो मे बी आई नीड टू गो टू द US स्टॉक एक्सचेंज, बाय शेयर्स ऑफ एप्पल देयर, राइट। अब इस स्कीम के अंडर यू आर ऑथराइज, यू आर अलाउड टू रेमिट मनी फ्रॉम हियर टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया। वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों अलाउड है।
और यहाँ तक भी अलाउड करता है आरबीआई सर आपको, से आपको लगता है कि मुझे यूएस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, तो यू कैन ओपन अ बैंकिंग अकाउंट आउटसाइड इंडिया इन योर ओन नेम, transfer the money from here to your own to the account maintained outside India in a foreign bank account in a foreign bank, and use that money for the purpose of say acquisition of shares and securities outside. वो भी अलाउड है सर, राइट। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, आप दुबई गए सर, आपको दुबई बहुत अच्छा लगा, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो वो भी अलाउड है सर। यू कैन एक्वायर प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया and for that purpose you can remit up to USD 2,50,000 per financial year for the acquisition of immovable properties outside India. आरबी ये भी अलाउ करता है सर आपको कि आप क्लब कर सकते हैं अमाउंट्स, कि से आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी लिमिट से अपनी वाइफ की लिमिट दोनों क्लब करके भी पैसे को भेज सकते हैं एक ही अकाउंट से। उसमें बस उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि उस केस के अंदर आपको दोनों जिनकी लिमिट्स यूज हो रही है दोनों को आपको जॉइंट ओनर बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी की। आप ये नहीं कर सकते कि वाइफ की लिमिट यूज कर लें या वाइफ आपकी लिमिट यूज कर ले और खुद ही ऑनर बन जाए, आपको दोनों को जॉइंट ओनर करना है। दैट दे हैव अलाउड। तो अच्छी स्कीम है सर, क्या लगता है? इज इट अ गुड स्कीम सर? कैन वी यूज दिस स्कीम? ऑफ कोर्स आई फील सर इट इज अ, हाँ जी राजेश भाई। Yes, sir, we can use it, sir. It's a Yes. good scheme. गुड स्कीम सर। तो इवन आजकल लोग सर इवन बिजनेस के लिए भी पैसा भेज रहे हैं सर, कि हम बिजनेस करना चाहते हैं कहीं पे इंडिया से बाहर, तो इंडिविजुअल अकाउंट से वो शेयर्स एक्वायर करने के लिए बिजनेस के लिए भी बाहर पैसा भेज सकते हैं, वो भी उन्होंने अलाउ कर दिया इसमें। तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम सर। अब इसकी लिमिटेशन भी समझ लेते हैं। ये तो हमने समझा कि सर ये अच्छाइयां है स्कीम की, तो इसमें लिमिटेशंस भी हैं कुछ, वो लिमिटेशंस हम समझ लेते हैं। तो उन्होंने लिमिटेशन क्या कहा, एक तो कि सर आप बैंक से फाइनेंस नहीं करवा सकते for the purpose of remitting any money under LRS for a capital account transaction, say for acquiring shares outside India or acquiring a immovable property outside India, banks आपको कोई फाइनेंस नहीं देंगे for sending money through LRS। दूसरा उन्होंने कहा सर कि आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, जैसे शेड्यूल 1 यानी जो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस बताता था, या शेड्यूल 2 जो आपको ट्रांजैक्शन बताता था जिसको करने से पहले आपको मिनिस्ट्री की या किसी डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए, वो इसके अंडर आप नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप शेयर्स और सिक्योरिटीज तो अक्वायर कर सकते हैं, बट अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस इस तरह के कुछ काम करना चाहते हैं तो वो इस स्कीम के अंडर आप नहीं कर पाएंगे। तो मार्जिन्स और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंजेस, ओवरसीज काउंटर पार्टी इज नॉट अलाउड, राइट। देन परचेज ऑफ एफसीसीबीज, एफसीसीबी क्या होता है सर? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो ये इंडियन कंपनी इश्यू करते हैं आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रिसोर्सेज इन फॉरेन करेंसी, उनको अक्वायर करने के लिए आप इंडिया से पैसा नहीं भेज सकते। रेमिटेंस आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड। फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया से बाहर आप पैसा इस स्कीम के अंडर नहीं भेज सकते। और डायरेक्टली आप या इनडायरेक्टली आप रेमिटेंस नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते सर? भूटान और नेपाल। ये मैंने आपको रीजन बताया कि क्योंकि वहां पे बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है इंडियन रुपीज में होते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल, फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट, फॉर द पर्पस ऑफ इवन इन्वेस्टमेंट इन नेपाल आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलती। भूटान के केस में आप इन्वेस्टमेंट इंडियन रुपीज में भी कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं, पर इंपोर्ट के केस में भूटान या नेपाल दोनों में ही आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलती। ओके। और एनी कंट्री आइडेंटिफाइड बाय एफएटीएफ एज अ नॉन कोऑपरेटिव कंट्री। सर ये एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ की फुल फॉर्म है सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको हमने हो सकता है इसके बारे में ज्यादा नहीं पता हो हमें, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके बारे में हमने सुना जरूर है सर। और वो सुना है हमारी एक फेवरेट कंट्री है हम इंडियंस की, उसके रेलिवेंस में हमने सुना है सर। तो फेवरेट कंट्री में कहूँ तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वुड हैव थॉट ऑफ अ कंट्री कॉल्ड एज पाकिस्तान। तो उसके रेलिवेंस में हमने सुना है सर, कुछ हमने सुना है उसके बारे में, अखबार में पढ़ा है
विच इज इन रिलेशन टू कि भाई वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, वो ग्रे लिस्ट के अंदर है, कुछ हमने, हम श्योर हम सबने सुना होगा इस बारे में, और कुछ उन्होंने एक्शन किए अगेंस्ट सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ अ ब्लैक लिस्ट। तो वो जो ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट की हम बात करते हैं सर, वो लिस्ट जो है वो FATF की है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो उसमें क्या होता है सर, अगर वो ब्लैक लिस्ट यानी जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, यानी जो कंट्रीज कोऑपरेट ही नहीं कर रही विद द वर्ल्ड कम्युनिटी टू इंश्योर कि उनकी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम यूज ना हो फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उनको वो कह देते हैं नॉन कोऑपरेटिव है। तो उसका क्या रिपरकशन होता है उस कंट्री के ऊपर कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड who are signatories to this accord of FATF would stop any dealing with this country। उनके साथ उनको वो डीलिंग बंद कर देंगे उस कंट्री के साथ जो नॉन कोऑपरेटिव बन जाती है एज पर द लिस्ट ऑफ FATF। तो आज की डेट में इसमें दो नाम है सर, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज इन ग्रे लिस्ट, तो वन स्टेप बिहाइंड दिस नॉन कोऑपरेटिव एरिया, और इसी चीज का उनको डर है कि अगर हम नॉन कोऑपरेटिव में स्लिप कर गए तो उस केस के अंदर हमारी इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका लगेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वुड स्टॉप डूइंग एनी बिजनेस विद दैम, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर ट्राइंग at least on the face to act against these terrorist organization and everything, okay। एंड इसके अलावा आप किसको नहीं कर सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज identified as posing significant risk of committing acts of terrorism as advised separately by the Reserve Bank of। तो इसकी एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अंदर अगर किसी का नाम आ जाता है तो उसको आप रेमिटेंस नहीं कर सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसके अलावा आप रेमिटेंसेस कर सकते हैं। एंड व्हाई पैन हैज बीन मेड मैंडेटरी हियर सर, बिकॉज व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस यू डू उसके अंदर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर वो आपसे आपकी डिटेल लेता है, पैन नंबर लेता है, सोर्स ऑफ फंड मांगता है कि जो पैसा कहाँ से आया जिसको आप रेमिटेंस कर रहे हैं, पर्पस मांगता है किसको आप रेमिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, मैंडेटरी फॉर्म है। और उसकी एक रिपोर्टिंग होती है सर T+1 बेसिस पे, यानी जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके नेक्स्ट डे ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है टू RBI बाय दैट बैंक विच इज पैन बेस्ड। तो पैन के थ्रू एक तो वो ट्रैक करते हैं कि आपने लिमिट तो वायलेट नहीं की 2.5 लाख की, और दूसरी बेसिकली वो चेक करना की कोशिश करते हैं यानी इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और समथिंग, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपको स्कीम क्लियर हो गई होगी आई एम श्योर, ठीक है। कोई डाउट्स हुए तो हम डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस टाइम डाउट्स को क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर आप बाई चांस इस स्कीम से कवर्ड नहीं है, सपोज से आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है 1 साल से पुराना, तो क्या होगा, तो उस केस में RBI क्या कहती है कि भाई जो हमने लिमिट दी है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर विच इज USD 2,50,000, वो लिमिट आपको फिर भी अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट लिमिट, ठीक है। इन केस यू आर अ रेसिडेंट कोई इशू नहीं है, आपको वो लिमिट अवेलेबल है। बट उसमें उन्होंने क्या डिफरेंस करा कि आपको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस करने के लिए तो अवेलेबल है, पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शंस की लिस्ट आपको नजर आ रही है, ये ट्रांजेक्शंस जो आप अदरवाइज भी कर सकते थे, बट आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे अगर आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS में कवर्ड नहीं है, ठीक है। या उसकी कुछ अलग प्रोसीजर्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं, वो आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो आप अप्लाई कर पाए, हो सकता है आप नहीं कर पाए, तो जनरल परमिशन आपकी खत्म हो जाएगी। ओके सर। अच्छा, मैंने कुछ बताया था आपको कि भाई कुछ केसेस के अंदर आप USD 2,50,000 से ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग RBI अप्रूवल। तो वो कौन से केसेस हैं सर, वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, एक है एजुकेशन के केस में, और तीसरा है इमिग्रेशन के केस। ये इसकी एक्सेप्शन है रूल की कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है बियॉन्ड 2,50,000 तो उस केस में आपको RBI अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो इन 3 केसेस में जरूरत नहीं पड़ती, पर इसके लिए कोई एविडेंस चाहिए होता है, आपको एक एविडेंस देना होता है बैंक को कि भाई ये हमारे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे को इससे ज्यादा चाहिए फंड्स,
तो उसके लिए हमारे को एविडेंस देना पड़ता है। वो एविडेंस क्या होता है इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है कि आपको एक एस्टिमेट डलवाना पड़ता है फ्रॉम अ डॉक्टर इन इंडिया और अ हॉस्पिटल और डॉक्टर अब्रॉड ऑफरिंग ट्रीटमेंट। वो आपको एस्टिमेट देता है बना के, भाई इतना एस्टिमेट है, तो बैंक्स आर ऑथराइज टू रेमिट sum of money exceeding USD 2,50,000 also up to the amount of the estimate। कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडीज अब्रॉड। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए गए हैं, तो उसके एस्टिमेट के बेसिस पे हम रेमिट कर सकते हैं एक्सीडिंग USD 2,50,000। एमिग्रेशन के केस में उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्सेस अमाउंट है, दिस यू कैन यूज फॉर मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन। पर इसमें उन्होंने एक चीज और लिखी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, दैट दिस कैन नॉट बी यूज फॉर अर्निंग पॉइंट्स or credits to become eligible for immigration by way of overseas investments into government bonds, lands, commercial enterprises, etc। तो इसका क्या मतलब है सर कि जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर, वो कहते हैं कि सर अगर आप हमारे यहाँ पे एटलीस्ट इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दे, तो एक वो अमाउंट की लिमिट देती हैं और वो बताते हैं कि इस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दें तो हम आपको रेसिडेंशियल परमिट दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी जो ये एक्सेस अमाउंट है, दिस कैन नॉट बी यूज टू अर्न दोज पॉइंट्स टू बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट basically for earning those points to become eligible for residential permit. This you can only use for meeting the incidental expenses in that country. So this is basically the scheme of liberalized remittance scheme, and basically जिस purposes के लिए आपको remittances allowed है। Okay. Leave this. Okay. एक चीज हमारे को याद रखनी है, दो नॉट रियली रेलिवेंट टू फेमा, बट मैं शॉर्ट में आपको याद दिलवा देता हूँ कि 1 अक्टूबर से सेक्शन 2061G इनकम टैक्स में आया, TCS ऑन रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया। तो हमको इंश्योर करना है कि भाई वो TCS जो है वो बैंक कलेक्ट करेगा। हाँ, 1 अक्टूबर से हमारी स्कीम आई थी, तो उसमें उन्होंने अलग अलग केसेस में अलग अलग रेट्स हैं, बट दिस इज विच इज एप्लीकेबल टू पर्संस। TCS एप्लीकेबल हो चुका है, तो ये हमारे को याद रखना है। नॉट रेलिवेंट टू फेमस, आई एम ओनली स्किपिंग दैट एरिया। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट इशू इसमें और भी आता है कि सपोज कीजिए मैंने बाहर घूमने जा रहा था, लेजर ट्रैवल के लिए गया, मैंने कुछ फॉरेन करेंसी एक्वायर की, से $10,000 एक्वायर की। अब मैं वो उसको इंडिया में वापसी आ रहा हूँ और मैं $10,000 में कुछ मेरा खर्चा हो गया, कुछ मैंने बचा ली और वो मैं बचा के इंडिया में लेके आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स राजेश जी एग्री करेंगे कि सर बस तो जब ही है जब वाइफ साथ में ना गई हो, नहीं तो आजकल वो एयरपोर्ट में वो इतनी शॉपिंग की ऑप्शंस होती हैं कि वो सारा खर्चा वहीं पे करवा देती हैं। तो पर चलो अगर आप बचा के लिए आए, आप समझदार थे, आपने किसी तरह कन्विंस कर लिया उनको खर्चा ना करने के लिए, तो क्या होगा अगर से मैं $10,000 लेके गया था और मैंने उसमें से किसी तरीके से मैंने $3,000 बचा लिए और मैं $3,000 बचा के लिया है इंडिया में, तो मुझे क्या करना है? क्या मैं वो $3,000 अपने पास रख सकता हूँ या मुझे उसको वापसी करना है बैंक को जहां से मैंने लिया था? तो उसकी क्या प्रोविजन सर? तो RBI क्या कहता है सर कि आपके पास 180 डेज है टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस अनस्पेंट फॉरेन करेंसी। कौन कहां से स्टार्ट होगा 180 डेज? जिस दिन आपने ट्रैवल किया, जिस दिन आपने खरीदा, कहां से स्टार्ट होगा? तो उन्होंने कहा जी ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट यू रिटर्न बैक टू इंडिया। जिस दिन आपके वो पासपोर्ट में इमिग्रेशन की स्टैंप लेगी, जब आपने एंटर किया इंडिया में, वहां से 180 डेज की आपका सिस्टम चालू होगा। अब जब वो 180 डेज के सिस्टम में वो बेसिकली क्या कहता है कि भाई हमने आपको 180 डेज इसलिए दिए हैं टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस अनस्पेंट फॉरेन करेंसी। आपको लगता है कि जी मैं दोबारा घूमने जाने वाला हूँ, मैं वहां पे यूज कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है सर, कर लीजिए, ठीक है। किसी भी ऑथराइज पर्पस के लिए आपको अलाउड है यूज करना विद इन दिस पीरियड ऑफ 180 डेज। बट किसी वजह से आपको लगता है मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो विद इन दिस स्पैन ऑफ 180 डेज यू गो टू एनी डीलर, नॉट नेसेसरली द डीलर जिससे आपने खरीदी थी, किसी भी डीलर के पास जा सकते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए इस फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और बेनिफिट दिया लोगों को, उन्होंने कहा कि जी अप टू USD 2,000
यू मे रिटेन फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और इस यूएसडी 2000 में फॉरेन करेंसी कॉइन्स इंक्लूडेड नहीं है। तो कॉइन्स आप कितने भी रखिए, यूएसडी 2000 यू मे रिटेन फॉर अ इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे हमारे एग्जांपल में हमने कहा यूएसडी 3000, 2000 ही में रिटेन फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यूएसडी 1000 which is in excess of 2000, he has to either utilize within the next 180 days or surrender it to an authorized lender। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है, बहुत सिंपल रूल है। अपने को बस ये याद रखना है कि 180 दिन का टाइम लिमिट। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं सर इसकी क्या रेलिवेंस है। अब बैंक को क्या पता मैंने खर्च किया कि नहीं किया, राइट। तो इसकी रेलिवेंस कब आती है सर, कि जब कोई आपके पास आएगा। आप तो किसी को जाके नहीं बताओगे कि भाई मेरे पास 2000 से ज्यादा है, पर कोई आपके पास आ गया और उसने आपके यहाँ पे कुछ भगवान ना करे पर कोई सर्च हो गई और उसके पास फॉरेन करेंसी मिल जाती है इससे ज्यादा, तो then it would be considered as a violation of the RBI guidelines, the FEMA guidelines, and you can be penalized for it। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, मैं शॉर्ट में सर एक स्पेशल अकाउंट्स की बात कर लेता हूँ, एनआरओ या एनआरई की, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे क्योंकि आई थिंक सवा घंटा के करीब हो गया है। ठीक है, तो 15 मिनट और ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है सर, स्पेशल अकाउंट्स अंडर फेमा, अगेन आई थिंक थोड़ा बेसिक है, बट इसको समझना जरूरी है कि इसके अगेन मैंने देखा कि लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है इस एरिया को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबने सुने हैं नाम वो है एनआरओ और एनआरई अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट हम सबने ही सुने हैं नियरली। अब हमने सुने तो है सर, एनआरओ होता है और एक एनआरई होता है, बट कई बार हम कंफ्यूज होते हैं अगर हमने इस एरिया में काम नहीं किया कि एनआरओ क्या होता है और एनआरई क्या होता है और ये दोनों में क्या फर्क है, क्या स्कीम में डिफरेंस है। मैंने कई बार देखा सर, जब हम बैंक ऑडिट्स करते हैं तो इवन जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं उनको भी अवेयर नहीं होते और कई बार वो भी गलतियां कर रहे होते हैं। और कई बार क्योंकि वो हमारे अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें ही क्लैरिटी नहीं होती, तो हम भी वो पॉइंट आउट नहीं कर पाते, जबकि हो सकता है कि अदरवाइज हम वो पॉइंट आउट कर देते इश्यूज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझा देता हूँ आपको एनआरओ एनआरई क्या होता है। तो बेसिकली पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। सर एनआरओ और एनआरई दोनों अकाउंट्स नॉन रेसिडेंट्स के लिए। एनआरओ की फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और एनआरई की फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, तो दोनों ही नॉन रेसिडेंट के नाम में नॉन रेसिडेंट है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या है सर दोनों के अंदर? ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही नॉन रेसिडेंट के लिए तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों सेम है। ठीक है, पर फिर भी दो स्कीम्स हैं, दो अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं, तो फर्क क्या है सर, इसको समझते हैं। सर दोनों ही नॉन रेसिडेंट्स के लिए है, दोनों ही इंडियन रुपीज में होते हैं। अगेन ये मैंने कहीं पे देखा है, कई बार लोगों को गलत फहमी होती है कि एनआरई अकाउंट फॉरेन करेंसी में होता है, जबकि ऐसा नहीं है सर। एनआरई अकाउंट भी इंडियन रुपीज में ही होता है। ठीक है, दोनों ही सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में, करंट अकाउंट की फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में या रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों ही, एनआरओ भी एनआरई भी। और दोनों में फिर फर्क क्या है, इसको शॉर्ट में समझते हैं सर। तो बेसिकली क्या है फर्क सर, एनआरओ कोई स्पेशल स्कीम नहीं है सर। एनआरओ क्या है, अगर मैं इसको एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं, तो मैं एक रेसिडेंट हूं। ठीक है, मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, तो अगर मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, मेरे पास एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है। अगर मैं एनआरओ बन जाऊं, नॉन रेसिडेंट बन जाऊं, अंडर फेमा, नॉट इनकम टैक्स एक्ट, अंडर फेमा अगर मैं नॉन रेसिडेंट बन जाता हूं एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर फेमा, तो मैं ये अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट्स हैं जिसको हम कहते हैं सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये मेंटेन नहीं कर सकता। तो नॉन रेसिडेंट ये अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, उसको ये अकाउंट को रीडेजिग्नेट करवाना पड़ेगा। जो उसके नॉर्मल अकाउंट्स रन कर रहे थे उनको रीडेजिग्नेट करवाना पड़ेगा एज एनआरओ अकाउंट। ठीक है, और अगर मैं नॉन रेसिडेंट था, मेरे एनआरओ अकाउंट खुले हुए थे और मैं रेसिडेंट बन गया अंडर फेमा, तो मुझे इन्हीं अकाउंट्स को रीडेजिग्नेट करवाना पड़ेगा एज रेसिडेंट अकाउंट। यानी रेसिडेंट अकाउंट मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिसको हम नॉर्मल अकाउंट कहते हैं, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मल करंट अकाउंट, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैं इस तरीके से कहता हूं इसको कि एनआरओ इज नॉट अ स्पेशल स्कीम एट ऑल। व्हाट इज अ नॉर्मल अकाउंट फॉर अ रेसिडेंट
द नॉर्मल अकाउंट फॉर अ नॉन रेसिडेंट इज एनआरओ। ठीक है, पर एनआरई एक स्पेशल स्कीम है। एनआरई वाज डिजाइन सो दैट पर्संस हु आर बेसिकली फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, जिनका कहीं ना कहीं रूट्स इंडिया के अंदर है, वो इंडिया के अंदर पैसे को लेके आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें पैसे। ठीक है, तो अब जब हमने अप्रोच किया, एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रोच किया नॉन रेसिडेंट्स को, उनको कहा कि भाई आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो उनकी दो कंसर्न्स थी। क्या थी? एक कंसर्न तो उनकी ये थी कि चलो सर हमने एफडी बना दी इंडिया में, तो क्या कंसर्न थी? पहली कंसर्न ये थी कि भाई उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स का इशू आएगा, इनकम टैक्स का इशू आएगा तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी और मेरे को सारी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी इनकम टैक्स की, तो ये तो बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा मेरे लिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं। तो उन्होंने सेक्शन 10 के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इसको एग्जम्प्ट कर दिया। एनी इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ एनआरई अकाउंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, चाहे कितना भी अमाउंट हो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। एक कंसर्न मीट हो गई। दूसरी कंसर्न उनकी क्या थी कि भाई ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स वी हैव लिबरलाइज्ड द रूल्स, बट पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव था। तो उसके अंदर उनकी कंसर्न ये थी कि भाई हमने पैसे को भेज दिया, यहाँ पे से एफडी बना दी, आपने इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट कर दिया, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी पैसे की तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठे हो कि भाई साहब इतना तो नहीं ले जा सकते, ये तो आप नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक और फैसिलिटी देते हैं कि you can take out the complete money at one go. So 100% repatriation is possible from a NRE account. आप कितना भी पैसा हो NRE अकाउंट में वन शॉट में जो अकाउंट होल्डर है इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर सकता है। Now this facility which was given 100% repatriation become a headache for the RBI. क्यों हेडेक बन गई? क्योंकि now the concern is that whatever would go to the NRE account can be remitted outside India. कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की कि what can go to the credit of a NRE account. क्या NRE अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है? तो एक्चुअली अगर आप फेमा को देखेंगे ना सर, तो NRE अकाउंट दो इंडिया में होता है, इंडियन रुपीज में होता है, इंडियन बैंक्स के साथ होता है, बट प्रैक्टिकली इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन मुझे फॉरेन करेंसी में लानी है, अगर वो जो जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया उसका एनआरई अकाउंट था इंडिया में और मुझे एनआरई अकाउंट से वो पेमेंट दे दे, तो इट इज कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू रियलाइजेशन इन फॉरेन करेंसी। तो इसका जो स्टेटस उन्होंने दिया वो दिया इक्विवेलेंट टू अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में करें, आप बाहर से पैसा लेके आए फॉरेन करेंसी में या एनआरई अकाउंट से पैसा दिया, दोनों को इक्विवेलेंट लेवल पे रखा गया, राइट? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनआरई अकाउंट, राइट? ओके, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की एनआरई अकाउंट के बारे में। एक छोटा सा हम समझ लेते हैं व्हाट इज एन एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट। सर ये अकाउंट अगेन नॉन रेसिडेंट के लिए है जो एनआरआई या पीआईओ है। एनआरई अकाउंट भी हर एक नॉन रेसिडेंट एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकता सर, हर एक नॉन रेसिडेंट एनआरओ अकाउंट तो खोल सकता है पर हर एक नॉन रेसिडेंट एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकता। एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट से वो नॉन रेसिडेंट खोल सकते हैं जो एनआरआई है या पीआईओ। और एनआरआई की डेफिनेशन क्या है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनआरआई की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, फेमा में वो कहता है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए बट नॉट रेसिडेंट इन इंडिया इज एनआरआई। और पीआईओ उन्होंने कहा कि भाई सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट जिसके रूट्स इंडिया में है, तो रूट्स के लिए उन्होंने कहा कि भाई पहले कभी सिटीजन खुद था या उस वो सिटीजन जो पर्सन है उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, या वो स्पाउस उसका जो है वो इंडियन सिटीजन है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ चीजें दी हैं जिसके थ्रू उन्होंने पीआईओ को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है सर, एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है सर? ये एक फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में होता है अकाउंट, इंडिया में ही होता है, इंडियन बैंक्स के साथ होता है।
पर ये डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी में होता है। एनआरई अकाउंट की फिक्स डिपॉजिट जो होती है इंडियन रुपीज में होती है। एफसीआर की डिपॉजिट जो है फॉरेन करेंसी में ही होती है, राइट। होता ही है सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में। एनआरई तो सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, पर एफसीआर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में होता है। मिनिमम 1 साल का होता है टेन्योर, मैक्सिमम 5 साल का होता है, और ये होता ही फॉरेन करेंसी में है। इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। ओके। एक है ईएफसी अकाउंट, ये हम सब ने प्रैक्टिकली देखा होगा कभी ना कभी ऑडिट में। अगर हमारे स्पेशली एक्सपोर्टर क्लाइंट्स हैं तो हमने देखा है कि उनकी ईएफसी अकाउंट होता है। ये बेसिकली इंडियन रेसिडेंट्स, इंडियन कंपनीज के लिए है। इन केस दे आर अर्निंग फॉरेन करेंसी, दे आर एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो दे कैन ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। और इसका फायदा ये होता है कि भाई इसमें पैसा जो होता है फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हो आप। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया है उन्होंने, बट यू कैन मेंटेन दैट मनी इन फॉरेन करेंसी, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो हम कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब समझेंगे। एक आरएफसी अकाउंट होता है, डायमंड डॉलर अकाउंट है। डायमंड डॉलर इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव, व्हाट वी कॉल एज ईएफसी अकाउंट। पर ये डायमंड डॉलर जो होता है बेसिकली ये उन फर्म्स के लिए है, ये कंपनीज के लिए है जो प्रीशियस मेटल ज्वेलरी या रफ और कट डायमंड्स के अंदर डील करते हैं, उनके लिए है, ठीक है। लास्ट 2 मिनट में जो लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा कंपाउंडिंग के ऊपर सर। शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कंपाउंडिंग के बारे में। तो सपोज कीजिए आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन में कोई वॉयलेशन किया। अब आरबीआई चाहता है कि भाई आपने ये वॉयलेशन किया, आप इसको हमारे को उन्होंने आपको नोटिस दिया, तो यू कैन गो फॉर अ कंपाउंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंडिंग इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, तो आपको इसके अंदर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ फेमा बेसिकली डिफाइंस गिव्स द पावर फॉर कंपाउंडिंग टू आरबीआई बेसिकली। तो उसकी इन में से किसी की भी आपने वॉयलेशन की, प्रोविजंस की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, नोटिफिकेशंस की, किसी ऑर्डर की, डायरेक्शंस की, सर्कुलर्स की, तो आपको कंपाउंडिंग में जाना पड़ सकता है, ठीक है। और इसको बेसिकली हवाला ट्रांजेक्शंस को छोड़ के, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शंस को छोड़ के आप कंपाउंडिंग में जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल। इसके अंदर आपको क्या, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है कंपाउंडिंग का, वो आपको भरना पड़ता है। एक फीस लगती है उसमें, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में वो लेते हैं 5,000 रुपए की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में। वो आपको वहां पे सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद सम रिक्विजिट डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वॉयलेशन व्हिच यू हैव डन। और उसके बाद फिर वो उसके अंदर हीयरिंग के लिए वो आपको बुलाते हैं। हीयरिंग इज अगेन ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो जो आप कहना चाहते हैं वो लिखित में देके छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हीयरिंग में जाएं। आप जाना चाहें जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है अगेन। और वहां पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन विच एन ऑर्डर फॉर कंपाउंडिंग वुड बी गिवन। और उस ऑर्डर के हिसाब से आप कंपाउंडिंग फीस पे कर देंगे, तो आपको वो ऑर्डर आ जाता है जिसके अंदर फिर वो उस ऑफेंस के लिए आपको वो पेनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ दैट कंपाउंडिंग फीस। और अगर आप वो कंपाउंडिंग फीस नहीं पे करते तो वो ऑर्डर वुड बिकम वॉइड, null and void, and then of course penalty proceedings can be initiated, or investigative proceedings can be initiated by the RBI through the Directorate of Enforcement. वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आई थिंक मैंने कोशिश किया कि मैं 1.5 घंटे में कुछ चीजों को कवर कर पाऊं फेमा का। राजेश भाई, मुझे लगता है हम क्वेश्चंस ले ले पहले, फिर उसके Yes, बाद sir. अगर Yes. कुछ टाइम में There होगा are तो हम cover more करेंगे। than 20 question. Sir. राइट सर, चलिए। तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ सर, क्वेश्चन हाँ आंसर्स सर. में। Bank asks for certificate from CA regarding FC exposure, unhedged, hedge, natural hedge, and UFC. What is to be reported and verified for the same, sir? हिमांशु जी का क्वेश्चन है सर। हिमांशु जी, इसके अंदर बेसिकली जो आपको चेक करना है, नेचुरल हेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अनहेज और हेज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हेजिंग क्या होती है बेसिकली। बेसिकली हेजिंग क्या है कि से आपका कोई फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है, आपने कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ले रखी है फॉरेन करेंसी में, आपको पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की करनी है, आपको पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल की करनी है, वो फॉरेन करेंसी में करनी है। तो ऑफ कोर्स आपका अमाउंट तो फिक्स हो सकता है, बट बिकॉज ये फॉरेन एक्सचेंज रेट इज नॉट फिक्स, तो वो आपकी जो लाइबिलिटी है वो चेंज होती जाएगी। तो बेसिकली
आप हेज हैं, यानी आपने कोई कवर ले रखा है उसको कवर करने के लिए उस रिस्क को फॉरेन करेंसी के, या आप अनहेज्ड है उसका वो लेते हैं, आपसे सर्टिफिकेट लेते हैं, सीए से एक्सपेक्ट करते हैं। अनहेज आपको क्लियर है, हेज आपको क्लियर है। नेचुरल हेज हो जाएगा जहां पे आपके पास कोई इनफ्लो है और आपका आउटफ्लो भी है, तो वो अपने आप में एक नेचुरल हेज बन जाएगा। जैसे आपके पास आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन ले लिया, तो फॉरेन करेंसी लोन में आपकी आउटगो होनी है और एक्सपोर्ट से आपकी इनफ्लो होनी है, तो इट बिकम्स अ नेचुरल हेज। तो वो उसको अलाउ करते हैं नेचुरल हेज को। उसकी जो डेफिनेशन है वो भी उस जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसके अंदर उन्होंने दे रखी है। नहीं तो इफ यू रिक्वायर आई फॉरवर्ड यू दी सर्कुलर, द नेसेसरी सर्कुलर फॉर इट। तो उसके अंदर उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि व्हाट वुड बी कंसीडर्ड एज अ नेचुरल हेज। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 to 1 मैचिंग होनी चाहिए कि भाई उसी दिन वो आना चाहिए पैसा और उसी दिन जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए उस फॉर्म में, तो वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं व्हाइल गिविंग दी सर्टिफिकेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं सर, सुधीर कुमार भूटानी जी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू रिलीज फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। Since there is no collection in such case, it will want to write off the amount in such cases. Sir, what is the procedure for taking the RBI approval under FEMA? सर इसके अंदर क्या है, जो आप बात कर रहे हैं कि 12 महीने के पीरियड के अंदर आपको रियलाइजेशन करनी है एक्सपोर्ट की, वो बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। अगर आपने वो रियलाइजेशन नहीं करी तो उस केस में क्या होता है, आपको पहला एक तो कर सकते हैं आप अपने ईडी को अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा टाइम लिमिट बढ़ा दिया जाए फॉर रियलाइजेशन। अगर आपको लगता है कि भाई 12 महीने में तो मैं नहीं कर पाया पर एक्सटेंडेड टाइम में मैं कर लूंगा, तो you can go approach your AD asking them to extend the time for realization of export proceeds। अगर आपको लगता है उसके बाद कि आप उसके बाद भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको राइट ऑफ में जाना पड़ता है। राइट ऑफ के प्रोविजंस में सर उन्होंने 3 लेवल पे पावर दी है बेसिकली। पहली पावर उन्होंने दी है 5% की या 10% की, ये हम कहते हैं जिसको सेल्फ राइट ऑफ। सेल्फ राइट ऑफ क्या होता है सर, कि आप खुद एक्सपोर्टर राइट ऑफ कर सकता है। कितना कर सकता है सर, 5% और 10% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो उस एक्सपोर्टर ने प्रीवियस कैलेंडर ईयर में कितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज की थी, उसका 5% या 10% वो खुद राइट ऑफ कर सकता है। अब आप कहेंगे सर ये 5% ये 10% कौन डिसाइड करेगा? तो उन्होंने कहा सर कि अगर आप स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर हैं। स्टेटस होल्डर कौन होता है सर? बेसिकली जिसको आप कई बार सुनते हैं कि भाई स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, वो कहता है जी मैं स्टार एक्सपोर्ट हाउस हूँ। तो वो स्टार कौन देता है सर? डीजीएफटी देता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कुछ उनकी कंडीशंस हैं, अगर वो आप कंप्लाई कर देते हैं और उनको अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक्सपोर्ट में वो कह देते हैं आप स्टार हाउस हो गए, स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो गए, तो यानी आप स्टेटस होल्डर हो गए। तो उस केस में आपको 10% की पावर है, अदरवाइज 5% की पावर है। उसके बियॉन्ड 10% तक आपका बैंक कर सकता है और उससे ज्यादा सिर्फ आरबीआई कर सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा सर आपकी कितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज है प्रीवियस कैलेंडर ईयर में, उसका 5% या 10% आप खुद जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड आपका बैंक करेगा और उसके बियॉन्ड सिर्फ आरबीआई कर सकता है। पर इसमें एक चीज याद रखिएगा सर कि अगर आपका केस सस्पिशियस केस है, अगर आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी लाइक सीबीआई या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, तो आप सेल्फ राइट ऑफ या ईडी आपका राइट ऑफ नहीं कर सकता एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का। उस केस में सिर्फ आरबीआई ही राइट ऑफ कर सकता है और उसका एक प्रोसीजर है सर, कुछ आपको चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, वो आप मास्टर्स डायरेक्शन में जाएंगे एक्सपोर्ट की, उसमें दे रखी हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर एक सीए सर्टिफिकेट भी लगता है उसमें, और सीए हैज टू सर्टिफाई कि आपने प्रपोर्शनेट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को सरेंडर कर दिया। तो जितने की आपने रियलाइजेशन नहीं करी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की, उतने के अगर आपने कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्लेम कर लिए थे वो भी आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। तो आपको ये याद करना है, ध्यान रखना सर। ओके, विशाल गुप्ता जी का क्वेश्चन है सर, वेदर एनी कंप्लायंस रिक्वायर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर इन केस ऑफ एफडीआई रिसीव्ड एज इक्विटी दैट इज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर इसमें ना प्लीज आप ध्यान रखिएगा सर, जब हम एफडीआई रेगुलेशंस की बात करते हैं ना सर, तो वहां पे वो 3 स्टेटस बात करता है। आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे 3 लेवल्स पे वो बात करता है, एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट
और एक है बेसिकली एनआरआई का जो स्टेटस है बेसिकली इसमें। तो बेसिकली 3 स्टेटस है। अगर आप नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहे हैं एफडीआई के अंदर इक्विटी शेयर्स, तो जनरली इट वुड बी परमिटेड, देयर इज नो इशू। पर unless until we see the case, we will not be able to answer it 100%. But in a general way, if you ask me, general way, तो जनरल केस के अंदर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट इज परमिटेड। ओके। शुभम जी का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन फेमा, एनी सर्कुलर्स इन फेमा ऑन क्रिप्टो करेंसी। सर क्रिप्टो करेंसी क्या है, प्रॉब्लम क्या रहा है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर, कि आरबीआई ने पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करी, फिर बात करी तो उन्होंने इसको प्रोहिबिट कर दिया। प्रोहिबिट कैसे किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर से इज इलीगल, उन्होंने डायरेक्ट किया बैंक्स को कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगे, चाहे वो बाय के चाहे सेल के अंदर जिसमें क्रिप्टो करेंसी है। इसके अगेंस्ट कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेल्ड किया कि भाई ये प्रॉपर नहीं है जो आपने गाइडलाइंस निकाली। तो जो अभी आज की डेट में मेरी नॉलेज है लेटेस्ट, उसके हिसाब से इसके ऊपर अभी फ्लक्स बना हुआ है। बैंक्स जनरली आर वेरी रिलक्टेंट टू डील विद क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप बैंक के पास जाएंगे, बट पर से अभी इसके बारे में एक फ्लक्स है, एक वैक्यूम है कहीं ना कहीं, कि इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस फेमा की अंडर अवेलेबल नहीं है। ओके। Any restrictions on NRE remittance abroad from India in is from the NRE account. तो जैसे सर जब मैंने NRE अकाउंट की बात की तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि NRE अकाउंट में से 100% repatriation is possible. There is no restriction per se. बस आपको ये ध्यान रखना है सर कि NRE अकाउंट से जो आप repatriation कर रहे हैं, बेसिकली वो जो मनी है जो NRE अकाउंट में आता है वो आफ्टर ड्यू पेमेंट ऑफ टैक्स आता है। तो बस वही आपको इंश्योर करना है, जब बैंक के पास आप जाएंगे और आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरे एनआरई अकाउंट से इंडिया से बाहर रेमिटेंस कर दीजिए, तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं लगाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया में ट्रांसफर करेंगे तो जरूर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, या आपको आस्क कर सकता है कि भाई आप कुछ कंप्लाइंस करें। जैसे सपोज कीजिए आपने एनआरई अकाउंट से शेयर्स एक्वायर करने के लिए कोई पैसे दिए, तो उस केस में बैंक हैज टू इंश्योर कि भाई आप, बिकॉज इट विल अमाउंट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वो कंप्लाइंस के लिए आपको बोल सकते हैं, पर से वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाएगा। ओके। मुकेश जी पूछना चाह रहे हैं, कैन बी रेमिट यूएसडी 2.5 lakh पर ईयर बाय ओपनिंग आवर ओन अकाउंट इन फॉरेन करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट? यस सर। सो यू कैन ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया इन अ फॉरेन बैंक, remit the proceeds of liberalized remittance scheme to your own account outside India and use that money for the purpose of investment outside India, that is permitted. Any specific permission for payment of import after 6 months? हर्षिल पूछ रहे हैं सर एज सच कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। दो आरबीआई चाहता है कि आप 6 महीने के अंदर पेमेंट कर दें, बट उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर 3 साल तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, इफ देयर इज एनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो आप बैंक को अप्रोप्रिएट रीजन देके और अप टू 3 इयर्स आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर इंपोर्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। चंद्रमोहन जी पूछ रहे हैं, कैन वी यूज क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट इन फॉरेन करेंसी? सर यस सर, you can use your credit card for payment in foreign currency, but please note that any amount you spend through a credit card is also remittance of foreign currency abroad and it has to comply with the FEMA guidelines. कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कई बार इस तरह के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जो परमिटेड नहीं है या जिसके अंदर कुछ और कंप्लाइंस करने की जरूरत है। अभी मैं रिसेंटली एक केस हैंडल कर रहा हूँ जहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी कंपनी के अंदर आउटसाइड इंडिया थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। बड़ा यूनिक केस है। अब दिस अमाउंट्स टू अ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब उसने ध्यान नहीं दिया शुरू में, अब आफ्टर 2 इयर्स सडनली ही रियलाइज कि भाई मैंने ऐसे ट्रांजेक्शन किया और ये चीज आई सामने। तो नाउ वी हैव अप्रोच आरबीआई की एक तो डिक्लेयर करने के लिए ट्रांजेक्शन को, प्लस ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव डिलेड रिपोर्टिंग दी ट्रांजेक्शन, तो उसके अंदर कुछ कंपाउंडिंग के अंदर भी हमारे को जाना पड़ेगा, तो वो हमारे को ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बट पर से यू आर परमिटेड टू यूज अ क्रेडिट। whether IEC code is compulsory in LRS scheme? Sir, it depends sir. LRS scheme के लिए पर से I don't think IEC code की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बेसिकली जब जरूरत पड़ता है जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर, और LRS scheme is basically not meant for business transaction. It is basically in the area of personal transactions. तो पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए पर से आपको आईसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती. तो इन अ नॉर्मल सिनेरियो आई वुड से आईसी कोड वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, बट देयर माइट बी केसेस which I cannot think of right now, but where IEC code may be required. But per se, at a preliminary level, I can say कि LRS scheme में जरूरत नहीं पड़ती IEC. मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं सर, कैन एनआरई ओपन एसबी अकाउंट इन इंडिया इन फॉरेन करेंसी? आई नो दे कैन मेक एफडी इन फॉर्म ऑफ एफसीनार्स. तो जैसे मैंने कहा सर, एनआरआई के केस में ही कैन ओपन एसबी अकाउंट, बट दैट वुड बी अ एनआरओ अकाउंट और अ एनआरई अकाउंट. इट कैन नॉट बी अ रेसिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट. जैसे हमारे लिए एसबी अकाउंट होता है जिसको मैं रेसिडेंट सेविंग्स बैंक अकाउंट कह दूंगा, वो नहीं खोल सकते. तो वो एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं या एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं, वो उनको परमिटेड है. और एनआरओ अकाउंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ सेविंग्स, एनआरओ एनआरई बोथ कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ करंट अकाउंट और अ सेविंग्स अकाउंट और अ फिक्स्ड डिपॉजिट और अ रिकरिंग डिपॉजिट. और जैसे आपने ही लिखा है कि एफडी तो वो बना ही सकते हैं, एफसीआर डिपॉजिट वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड डिपॉजिट है, वो उनको परमिटेड है, वो बना सकते हैं. Okay. Difference between authorized error. Shubham Mishra ji, difference between authorized error and authorized person. So basically, authorized persons can be a lot of other persons other than what we discuss as a authorized leader. तो जिनको वो ऑथराइज हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, वो सब ऑथराइज पर्सन माने जाते हैं. उसमें जो स्पेसिफिकली दूसरों के लिए भी डील कर सकते हैं उनको हम ऑथराइज डीलर कहते हैं. ठीक है. हिमांशु मल्होत्रा जी इज आस्किंग $135,000 gifted to brothers settled in Dubai under LRS. Now he wanted to return the same. What is the limit to receive gift from brother in FC? So you can use receive the amount from your brother in FC. There is no issue. अगर वो remittance कर रहा है तो बैंकिंग चैनल. पर इसमें प्लीज थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, फेमा के एंगल से प्रॉब्लम नहीं है, पर एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. सर वो आता है बेसिकली कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये बेसिकली आपने सुना होगा, अगर बहुत से लोग मैंने देखा अवेयर नहीं होते, बट ये बेसिकली आता है जब हम ट्रस्ट वगैरह की बात करते हैं, जो डोनेशंस की बात करते हैं, तो वहां पे FCRA एक्ट एक्चुअली लगता है. तो एक बड़ा डिफरेंट इशू है जो बिकॉज हम FCRA के अंदर काफी काम करते हैं, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बात कि जो गिफ्ट्स रिसीव्ड है वो भी कहीं ना कहीं FCRA के अंदर एक्चुअली हिट होते हैं. एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ रिलेटिव, दो FCRA रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपको, आपको रजिस्ट्रेशन अदरवाइज जरूरत पड़ती है, वो उसकी जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ रिलेटिव, बट शायद कुछ उसकी रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर FCRA, वो जरूर आप चेक करिएगा FCRA गाइडलाइंस में. तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव which exceeds rupees 1 lakh in a year may require some kind of a reporting under FCRA. तो वो आप प्लीज इंश्योर करिएगा कि आप उसको चेक करें. ठीक है. ओके. शुभम जी अगेन पूछ रहे हैं, मैक्सिमम फॉरेन करेंसी कैन अ पर्सन होल्ड एंड इज द लिमिट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉइंस? तो सर जो मैक्सिमम करेंसी पर्सन होल्ड कर सकता है, मैंने आपको बताया USD 2000 एट अ टाइम. ही कैन नॉट होल्ड मोर देन USD 2000. कॉइन्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कॉइन्स आप कितने भी होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई RBI लिमिट नहीं लगाता. अरुण सर गुप्ता जी हाँ जी. गुप्ता जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर बनता है कि 2000 इन पॉन्ड्स आल्सो, इन डॉलर आल्सो, या नो इन सर. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राजेश भाई आपने. लेट मी क्लैरिफाई. एक्चुअली क्या है सर कि फेमा में जितनी लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो या तो है इन फॉर्म ऑफ USD या INR. तो अगर आप कोई करेंसी यूज कर रहे हैं अदर देन USD, अगर INR है तो INR है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर इफ यू आर यूजिंग अ करेंसी अदर देन USD, तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट मिलेगा उस करेंसी में. तो से अगर वो पाउंड है तो पाउंड का रेट जनरली USD से ज्यादा रहता है, तो इट मे बी ओनली 1500 पाउंड्स. अगर वो सिंगापुर डॉलर्स है तो उसका रेट कम रहता है USD से, तो इट मे बी 3000 सिंगापुर डॉलर्स. तो US डॉलर्स और इक्विवेलेंट करेंसी, इक्विवेलेंट मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ 2000 बट इन टर्म्स ऑफ रेट, वो आपको देखना. ठीक है. अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन था राजेश भाई. आई एम श्योर बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट होगा. सर.
एक आत्माराम सरिया जी इज आस्किंग, इज एनी परमिशन इज रिक्वायर्ड बाय सिटीजंस ऑफ नेपाल, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा फॉर बाइंग प्रॉपर्टीज इन इंडिया? सर बिल्कुल रिक्वायर्ड है सर। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि इन्वेस्टमेंट इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टीज का अलग से एक मास्टर डायरेक्शन है, तो उसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ेंगी। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा सर कि जो फार्म लैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो अलाउड ही नहीं है, तो प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर है। एक्सेप्ट फॉर अ रेसिडेंट, इवन अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू अ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसके अलावा आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे आप अक्वायर कर सकते हैं, पर उसकी कुछ गाइडलाइंस है, काफी डिटेल गाइडलाइंस है, तो आपको उसमें वहां पे जाके देखनी पड़ेगी। Arun Gupta is asking, if we have an explanation for cash FC in excess of USD 2000 per person, like my kids came from abroad and left it there, then can we have more than USD 2000 per person? Sir, in my opinion, sir, if they have left it, ठीक है सर, तो बेटर यू गो एंड सरेंडर इट, बिकॉज लेफ्ट करने का मतलब ये है सर कि क्या आप उसको उसकी प्रॉपर्टी मान रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, वो आपको प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज को इस तरीके से। तो बेटर ये है कि मतलब एज अ प्रिंसिपल यू कैन ऑलवेज डू इट, कि भाई मैं अगर मैं प्रूव करने की पोजीशन में हूं तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि भाई, क्योंकि ये लिमिट इज USD 2000 पर पर्सन, सो इफ यू हैव 5 पर्संस ईच कैन होल्ड USD 2000, राइट? तो आप 10,000 भी रख सकते हैं उस तरीके से, बट इफ यू आर एबल टू प्रूव यू कैन कीप, अदरवाइज बेटर इज टू सरेंडर। अगेन अरुण जी का एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम विद इन विच वी नीड टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी अकाउंट इनटू NRE और NRO अकाउंट? सर एक्चुअली तो देखा जाए तो कोई टाइम लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। मेरी ओपिनियन में सर जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि on you becoming from a resident to a non-resident, when you become a non-resident, immediately you have to convert your ordinary accounts into this non-resident account, and similarly on the date you become from a non-resident to resident, immediately you have to reconvert your these NRO accounts into resident accounts. तो कोई टाइम लिमिट नहीं है ऑन अ, मतलब लॉ कहीं ना कहीं आपको चाहता है कि आप इमीडिएट बेसिस पे इसको करें। शुभम जी का क्वेश्चन है, डिविडेंड रिसीव्ड इन NRE अकाउंट फ्रॉम इंडियन कंपनी वेदर एग्जेम्प्ट और नॉट? एग्जम्पशन से आपका मतलब इनकम टैक्स है या फेमा से, मुझे श्योर नहीं है, बट अगर आपने जो नॉन रेसिडेंट है उसने अगर इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था और इट वाज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो FDI रेगुलेशंस है उसकी अकॉर्डेंस में आपने इन्वेस्ट किया था, तो उसका डिविडेंड वो NRE अकाउंट में ले जा सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। सुनील सूरी जी का क्वेश्चन है, ऑन रिटर्न टू इंडिया इन हाउ मच टाइम द NRO एंड NRE अकाउंट हैव टू बी चेंज टू ऑर्डिनरी अकाउंट? सुनील जी, सर जैसे मैंने पहले भी इसका आंसर दिया कि लॉ सेज दैट इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन ऑन अ इमीडिएट बेसिस, तो आपको एक रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर उसको कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, कई बार हमने देखा है लोगों को कि वो NRE अकाउंट इंडिया में वापसी आ जाते हैं, NRE अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं थिंकिंग कि भाई उसका इंटरेस्ट तो एग्जाम्प्ट है। So please, when you go to the income tax act and refer to section 10, which talks about exemption of interest under NRE account, it also says कि भाई वो interest exempt जब ही है when you continue to be a non-resident as per the definition given in FEMA। ठीक है, तो अगर आप रेसिडेंट बन गए हैं और आपने वो बैंक को नहीं बताया और आप कंटिन्यू कर रहे हैं NRE अकाउंट को होल्ड करना, तो आपका वो इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा सर। ओके। Bharat Joshi is asking, when we approach banks for remittance of more than 6 months old sales invoice, debit note for services, banks are raising objection. How can we remit such genuine payment to service provider? तो सर मैंने इसके लिए आपको बताया कि उसके अंदर गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि इन केस अगर आपका कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, कोई डिस्प्यूट था, कोई इशू था, तो आप 3 साल तक भी रेमिटेंस कर सकते हैं। तो आप यू कैन रेफर टू दोज गाइडलाइंस एंड टेल देम कि भाई ये रीजन था और उसके अकॉर्डिंगली हमको रेमिट करने के लिए आप अलाउ करें, तो दे वुड हैव टू अलाउ सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन अरुण जी का, in case of write off of old dues from foreign customers by a company, is the auditors liable to report under FEMA? नहीं सर, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की लॉ की while writing off, तो of course you may be required
to qualify your audit report accordingly. And जैसे मैंने ये भी बताया आपको कि in case you write off export remittances, export proceeds, तो अगर आपने कोई export incentives लिए थे तो वो भी आपको surrender करने पड़ते हैं proportionately. तो वो भी it can also result into a financial effect on the company's account. तो उसलिए आपको वो appropriately report करने की जरूरत पड़ सकती है in your audit. Okay. अविनाश जी का क्वेश्चन है what document and form to be filled in case a foreigner giving loan to a closely held company. सर एक्चुअली क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर कोई फॉरेनर लोन देना चाहता है तो हमें पहले समझना पड़ेगा वो फॉरेनर का उस कंपनी से क्या रिलेशन है. इज ही अ इक्विटी होल्डर और इज ही अ थर्ड पर्सन, वो देखना पड़ेगा. अगर वो इक्विटी होल्डर है, उसकी इक्विटी की होल्डिंग अगर है, तो इन दैट केस ही मे बी अलाउड अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू गिव लोन टू दैट कंपनी. इफ ही इज नॉट अ इक्विटी होल्डर, देन इन दैट केस पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है वो कंपनी इंडिया के अंदर. अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैक्सिमम पीरियड 3 साल का है, उसमें उससे ज्यादा का नहीं ले सकते, नहीं तो वो अप्रूवल रूट में चला जाएगा इशू. तो आपको देखना पड़ेगा केस टू केस डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ दिस फॉरेनर विद दिस क्लोजली हेल्ड कंपनी व्हिच यू आर सेइंग. ओके, आर्या कुमार जी पूछ रहे हैं हाउ मनी कैन बी रिपैट्रिएटेड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू हिज ओन अकाउंट बाय एनआरआई. तो सर अगर आप एनआरओ अकाउंट से रिपैट्रिएशन कर सकते हैं तो दो ऑप्शंस आपके पास हैं सर. एक तो मैंने आपको बताया एनआरई अकाउंट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कितना भी आप बाहर रिपैट्रिएट कर सकते हैं. एनआरओ अकाउंट में आपके पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन तो है कि आप एनआरओ से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एनआरई अकाउंट के अंदर. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एनआरओ से रेमिटेंस कर सकते हैं इंडिया से बाहर डायरेक्ट. दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं. इसके लिए आपको सर ये समझना पड़ेगा कि एनआरई अकाउंट में तो कोई लिमिट नहीं है, तो एनआरओ अकाउंट से भी क्या अनलिमिटेड अलाउड है रिपैट्रिएशन. तो आरबीआई ने कहा नहीं सर, एनआरओ अकाउंट से रिपैट्रिएशन अलाउड है अप टू एन अमाउंट ऑफ यूएसडी 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर. 10 लाख यूएसडी तक आप कर सकते हैं रिपैट्रिएशन एनआरओ अकाउंट से, या आप ट्रांसफर कर सकते हैं एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में. उसका क्या फायदा है सर कि वंस यू ट्रांसफर फ्रॉम द एनआरओ अकाउंट टू द एनआरई अकाउंट, you can transfer from NRE account, you can transfer anytime any amount outside. तो कई बार rather than unless until the non-resident needs money outside India, sometimes it makes sense to transfer from the NRO account to the NRE account. तो उस केस में बैंक आपसे दो डॉक्यूमेंट जनरली एक्सपेक्ट करता है. पहला चीज एक डिक्लेरेशन एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपने जो 1 मिलियन की लिमिट है इसको ब्रीच नहीं किया. दूसरा वो एक्सपेक्ट करता है आपसे एक सीए सर्टिफिकेट. सीए सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है प्लीज समझिएगा. एनआरई अकाउंट में तो कोई भी पैसा जाता है ना सर, तो पहले ही वो उसके ऊपर जो रेलिवेंट टैक्स है वो पे होने के बाद ही एनआरई अकाउंट में जाता है. पर एनआरओ अकाउंट क्योंकि जैसे मैंने समझाया था शुरू में, इज लाइक अ नॉर्मल अकाउंट फॉर अ नॉन रेजिडेंट, तो उसमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम पे बैंक चेक नहीं करता कि इसके ऊपर ड्यू टैक्स पे हो गया कि नहीं हो गया. तो व्हेन यू वांट टू रेमिट इट आउटसाइड इंडिया और want to transfer from the NRO account to the NRE account, उस टाइम पे CA certificate is required for verifying due payment of tax on the amount being transferred. तो वो आपको देना पड़ेगा सर, आपको इंश्योर करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट के बिना वो रेमिटेंस अलाउ नहीं करें. विशाल जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय क्वेश्चन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स whether any intimation to RBI is required. No sir, no intimation to RBI is required unless until it is a case of approvals. Okay, next question आते हैं सर. योगी राज जी पूछ रहे हैं in case of information technology company who is having subsidiary company in India which provides services only to parents company. In case of information technology company who is having subsidiary company in India which provides services only to parent company on cost plus margin basis, however parent company does not remit all the invoices amount to the India, therefore there is a huge outstanding to be received from parent company. Is in this case it is permissible to do on that under FEMA because forest right sir. तो योगी राज जी जो आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक say there is an entity X which is situation outside India and there is an entity Y which is a wholly owned subsidiary of that entity X in India, और वो जो इंडियन एंटिटी है वो अपने पेरेंट को सर्विसेज दे रहा है, ऑफ कोर्स कॉस्ट प्लस मार्जिन में दे रहा है. ट्रांसफर प्राइसिंग इस पे एप्लीकेबल है, दैट यू वुड बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ. ठीक है, तो उसके अंदर सर
ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है फेमा में कि अगर उन दोनों का आपस में रिलेशन है तो उसको वो रेमिटेंस जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है इंडिया में नहीं लानी, या उसके लिए कोई उनको डिफरेंट टाइम लिमिट मिल रही है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे तो अपने पेरेंट को कर रहे हैं, चाहे किसी आउटसाइड पार्टी को कर रहे हैं, दी टाइम लिमिट रिमेन्स दी सेम, एंड इन केस यू ब्रीच दैट टाइम लिमिट देन इट इज अ वायलेशन ऑफ द फीमा गाइडलाइंस। तो वो आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम लिमिट के विद इन लेके। ओके, Sharad Jain ji is asking what will happen if one doesn't pay at all import payments after 3 years? Can RBI take any action, sir? सर जनरली क्या होता है कि आरबीआई को इतनी चिंता नहीं है अगर आप इंपोर्ट की पेमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि फॉरेन करेंसी बाहर जानी है। बट ऑफ कोर्स आपको आज की डेट में, क्योंकि देयर इज अ सिस्टम जिसको हम कहते हैं आईडीपीएमएस, इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है ना सर, इसके थ्रू आज की डेट में आरबीआई के पास कंप्लीट ट्रैक है कि जहां जहां पे इंपोर्ट हुआ और पेमेंट्स नहीं हुई, या आपने पेमेंट करी इंपोर्ट की और आपने जो है इंपोर्ट अभी तक नहीं किया, तो उन केसेस में वी हैव सीन वेयर आरबीआई हैज आल्सो इशूड नोटिसेस कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया। दो जनरली आरबीआई को इसमें ज्यादा कंसर्न नहीं होती क्योंकि रेमिटेंसेस होनी है इंडिया से बाहर होनी है, बट फिर भी दे कैन इशू यू अ नोटिस एंड आस्क कि भाई क्यों आपने पेमेंट नहीं की। Can we donate from NRE accounts in India? Sir, you can definitely donate from NRE accounts in India. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर वो डोनेशन जो एनआरई अकाउंट होल्डर कर रहा है, अगर वो एनआरई अकाउंट होल्डर फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उस केस में इट वुड बी कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसकी कंप्लायंस हो जाए। Manoj Kumar ji is asking whether payments through credit card for mobile applications, software, other services in foreign exchange, any permission is required. Sir, you can do it. There is no problem. ये miscellaneous remittances के अंदर आता है। I am assuming कि आप ये पूछ रहे हैं in the sense कि भाई ये मैंने अपने पर्पस के लिए मंगवाया, पर्सनल पर्पस के लिए, rather than the business purpose पर से। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसमें ट्रेड करने की या वो लाइसेंस को आगे सेल करने की। मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उस मैंने कोई ऐप के लिए पेमेंट कर दी और मैंने ऐप को डाउनलोड कर लिया, तो वो अलाउड है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Manoj Mittal ji is asking, an NRE has sold property in India, now wants to repatriate the money outside India. In this case, CA certificate is required or not, and what is the procedure? Can he directly deposit the money in his NRE account? मनोज जी, आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक, क्या वो एनआरई अकाउंट में डायरेक्टली ले जा सकता है, और नहीं ले जा सकता तो क्या प्रोसेस होगा उसको रेमिट करने का। तो सर डायरेक्टली डिपॉजिट एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा ये पैसा, ठीक है। यू विल हैव टू रूट दिस मनी थ्रू योर एनआरओ अकाउंट। अब आप एनआरओ अकाउंट में लाएंगे, आपके पास लिमिट है USD 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। यू कैन यूज दैट लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। Of course, CA certificate would be required. CA certificate would be required for the purpose of checking whether the due tax has been paid on the amount being remitted. तो जो भी उसके अंदर कैपिटल गेन्स हो रहा है, उसके ऊपर जो भी टैक्स इंडिया में बनता है, उसकी पेमेंट होने के बाद ही वो अमाउंट को रेमिट किया जा सकता है इंडिया से बाहर। ओके सर। अखिल गर्ग जी पूछ रहे हैं, नॉन रेसिडेंट सेलिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, do we have to open NRO account to transfer selling receipts? मैंने अभी इसका आंसर दिया, बिल्कुल you will have to open NRO account for transferring the selling receipts. Okay. Manoj Kumar Singh ji is asking, NRE interest income where to show in ITR in India? You should sir. मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर आपकी एग्जाम इनकम भी है तो वो आपसे पूछता है कि आपकी क्या क्या एग्जाम इनकम है, तो यू शुड शो दैट इंटरेस्ट इनकम एज एग्जाम्प्टेड, और वो आपके 26 ईयर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इन एनी केस नथिंग टू हाइड, आज की डेट में गवर्नमेंट से कुछ छुपा तो है नहीं सर। थोड़े दिन बाद तो गवर्नमेंट ही आपको बता देगी कि आपकी पर्सनल बैलेंस शीट ये है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, योगी राज इज आस्किंग व्हाट इज द लिमिट फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड पार्टली ओन्ड सब्सिडीज। So that is sir 400% of your net worth as per the last audited balance sheet. ठीक है सर, तो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू व्हिच यू कैन डू इट। बट अगर अगेन इसके अंदर दो उन्होंने एक्सेप्शंस दिए हैं। एक ये है कि अगर आपकी EEFC अकाउंट में पैसा पड़ा है, एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा पड़ा है,
या आपने कोई फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स इशू करे फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग मनी फॉर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर ये 400% की लिमिट नहीं लगती। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्म 15 CACB सर? Yogiraj ji is asking, sir. The purpose is basically the intimation to 15 CA is of course intimation to the income tax department for any remittances made outside India. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, क्यों किया आपने, क्या पर्पस था, उसकी इंटीमेशन है एक तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। 15 CB इज बेसिकली दे हैव डिजाइन सो दैट एनी विदहोल्डिंग टैक्स व्हिच माइट बी एप्लीकेबल देयर, तो वो विदहोल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल हो जाए उसमें। तो 15 CA सर एक्चुअली 4 पार्ट्स में है, पार्ट A, B, C एंड D। सिर्फ पार्ट सी जब आप भरते हैं तो उस केस में ही 15 CB चाहिए होता है। पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट डी अगर आप भरते हैं तो उस केस में 15 CB की जरूरत नहीं होती, मतलब CA सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट्स ऑन मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम एंड रीसेंट नोटिफिकेशन सर? सर दिस इज नॉट एक्चुअली कवर्ड बाय बेसिकली फेमा। ये आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली बात कर रहे हैं इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आता है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है कि ये बेसिकली बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है इन केस यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, सो दिस इज बेसिकली अ इंसेंटिव फॉर दोज एक्सपोर्ट्स। तो आई कैन फॉरवर्ड दैट पॉलिसी सर। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर से, तो मेरी नॉलेज उसमें लिमिटेड है, बट आई कैन फॉरवर्ड दैट पॉलिसी टू यू, यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट पॉलिसी फॉर दैट पर्पस। Arunji is asking what precautions are to be taken for issuance of 15 CACB सर? सर इसके लिए तो राजेश जी को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर एक वो करवाओ आप सेमिनार इसके ऊपर, कि इंटरनेशनल टैक्स का सेमिनार के बिना तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। बट ऑफ कोर्स सर मैं बहुत सारी चीजें अगर आपको कहूँ शॉर्ट में कि इंटरनेशनल टैक्स के अंदर सर, एंड प्लीज डोंट माइंड इट व्हेन आई एम सेइंग इट, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ। व्हाट आई हैव सीन सर कि हम इनकम टैक्स जब पढ़ते हैं ना, और हम सबने पढ़ा हुआ और हम प्रैक्टिस भी करते हैं मोस्ट ऑफ अस, हम मान लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल टैक्स भी काफी सिमिलर है और हमको समझ में आ ही गया है काफी कुछ, थोड़ा बहुत हमने कहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत कहीं सुना। सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे इंटरनेशनल टैक्स में थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ केसेस देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और 15 CACB जो है ना सर, सीए तो चलो ठीक है, क्लाइंट ने देना है, क्लाइंट के सिग्नेचर से होना है। जहाँ पे हम सीवी दे रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि सीवी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ सर, और मैं बहुत सारे सेमिनार्स में ये बताता हूँ, कई बार आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, पर मैं एक बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ राजेश भाई, और आई थिंक विल क्लोज द सेमिनार विद दैट एग्जांपल। सपोज कीजिए सर आपके एक क्लाइंट है कि जिसके अंदर उसने लोन ले रखा है से फ्रॉम से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से इंडिया में, या डॉइश बैंक से ले रखा है इंडिया के अंदर, या सिटी बैंक से लोन ले रखा है, उसने इंडिया में ले रखा है, इंडियन करेंसी में ले रखा है, और मैं उनको इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को कोई टीडीएस करने की जरूरत है क्या? हमें से कोई अगर शेयर करना चाहे इस बात के ऊपर, क्या कोई टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है? मैंने इंडिया में लोन लिया है, इंडियन कंपनी ने, इंडियन जो ब्रांच है, लोकल ब्रांच है सिटी बैंक की या ड्यूश बैंक की या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, क्या लगता है आपको सर, किसी को लगता है कि टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ सकती है? एक बार लोकेश जी अपनी क्वेरी जरा दोबारा बोलेंगे क्या? सर हमारे पास एक हमारा क्लाइंट है, उसने इंडिया में ऐसे दिल्ली में उसका ऑफिस है, उसने एक लोन अप्लाई किया, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसने ले लिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम से सिटी बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या ड्यूश बैंक से, किसी लोकल ब्रांच से तो दिल्ली में ब्रांच है कोई, उसने लोन ले लिया है, वो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है मंथली। क्या उसके ऊपर कोई टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है? एक आत्मा राम जी है, उन्होंने कहा या यस इट इज रिक्वायर्ड, तो उन्होंने कहा कि सर टीडीएस होगा उसमें। क्या लगता है सर, क्या व्यू है इस पे? आई थिंक इन माय ओपिनियन यस, टीडीएस तो काटना चाहिए, टीडीएस काटना चाहिए। अब ये सर जो आप कह रहे हो सुनील जी, आप तो एक्सपर्ट हैं, तो मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा था आप बोलेंगे ये बात, पर आई एम श्योर हम में से कुछ मेंबर्स ऐसे जरूर होंगे जिनको ये बात सुन के हैरानी होगी कि क्या बैंक के केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि हम तो मान के चलते हैं कि बैंक को अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो कभी टीडीएस एप्लीकेबल होगा ही नहीं उस केस में। और होता भी ऐसा, अब हम एसबीआई को देते हैं या आईसीआईसीआई बैंक को देते हैं या एचडीएफसी को देते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा को देते हैं, तो हम टीडीएस थोड़ी काटते हैं।
पर रीजन क्या है सर? रीजन ये है, राइट, तो आत्मा जी राम जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं बताता हूँ क्या है कहा उन्होंने, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्चुअली बैंक्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, सिटी बैंक का नाम लिया मैंने, ड्यूश बैंक का नाम लिया मैंने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम लिया, दीज आर एक्चुअली फॉरेन बैंक्स operating their branches in India. They are not Indian companies. They are foreign companies operating in India. They are actually non-residents in India. And there is a requirement of doing a withholding tax under section 195 on any interest payments made to them. Right? अब ये चीज हम अवेयर नहीं है। अब आत्मा राम जी ने क्या कहा अभी, और मैं वो आपको शेयर करता हूँ कि एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये हमने नहीं किया, वो हो सकता है कि गलत ना हुआ हो, इसलिए गलत ना हुआ क्योंकि ये सब क्या करते हैं कि मार्च के अंदर ही अप्लाई कर देते हैं अंडर सेक्शन 195 सबसेक्शन 3 फॉर इशुएंस ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स एट निल रेट। तो ये सब क्या करते हैं, अप्रैल के अंदर 2-3 तारीख में इनके पास एक सर्टिफिकेट आ चुका होता है निल रेट पे विथहोल्डिंग टैक्स का ऑन पेमेंट्स मेड टू देम। तो इसलिए वो जनरली हम उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ती। पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस एंड वी ऑब्टेन दैट सर्टिफिकेट फॉर आवर रिकॉर्ड्स। क्योंकि सर अगर हमें टीडीएस नहीं भी करा, विथहोल्डिंग टैक्स नहीं भी करा, तो भी हमारे को इसकी हो सकता है रिटर्न फाइल करनी पड़े, और रिटर्न के अंदर हमें डिस्क्लोज करना पड़े कि हमने 27E जो क्यू रिटर्न होती है जो नॉन रेसिडेंट की पेमेंट्स के लिए होती है, कि इतनी हमने पेमेंट करी इनको नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट की, और उस पर हमने टीडीएस नहीं काटा, और वो सर्टिफिकेट को हमें रेफर करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं, मैं लोगों को ये बात बताता हूँ, वहां पे वो पूछता है कि वेदर ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द रिटर्न हैव बीन डिस्क्लोज्ड। हमसे वो सर्टिफिकेट मांगता है ना सर 3CD के अंदर, तो वो नहीं तो हमारी गलत हो जाएगी कहीं ना। अनदर एग्जांपल, बड़ा छोटा सा मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। जैसे आज की डेट में आई एम श्योर ये सबको पता है कि अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अगर हम उसको कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पेशली कार लोन्स पे बहुत होता है कि भाई किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कार लोन ले लिया, ठीक है, अब वो लेके आ गया, वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, तो हम एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को कि भाई इस पे टीडीएस होना है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं दी, राइट। पर क्या टीडीएस सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे होना है, या उन्होंने कोई प्रोसेसिंग फीस ली शुरू के अंदर फॉर प्रोसेसिंग दैट लोन, क्या उस पे भी टीडीएस होने की जरूरत है? क्या लगता है सुनील जी? बॉस आई थिंक इट इज वेल कवर्ड विद इन दैट, उसको भी करना चाहिए, करना क्योंकि चाहिए बिल्कुल देखिए इट इज पार्ट ऑफ दैट व्हाट एवर वी आर पेइंग टू देम, राइट। तो इट इज तो वेल अरुण जी कवर्ड। कह रहे हैं यस ऑन ऑल पेमेंट। अब इसका रीजन सर क्या है मैं आपको बताता हूँ सुनील जी, और इसका रीजन क्या है सर, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मुझे क्लॉजेज याद नहीं रहते सर, बट आप अगर डेफिनेशन देखें इंटरेस्ट की, तो इट सेज दैट fees which the bank may which the institution may have charged for giving that loan on which that interest is charged is also considered as part of interest। तो उसका भी टीडीएस होना है 194 सबसेक्शन ए के अंदर, वो आपको 194 ए के अंदर उसका टीडीएस करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज इंटरेस्ट। अभी हम बहुत से लोग, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वुड बी अवेयर कि एनबीएफसी में टीडीएस कटना है, पर कई बार हम ये मिस कर जाते हैं कि एनबीएफसी के टीडीएस तो कटना है, पर उसके जो प्रोसेसिंग फीस है उस पे भी हो सकता है एज ए इंटरेस्ट टीडीएस कटने की जरूरत। तो इसलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि उन्होंने कहा 15 सीएसीबी, तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं इंटरनेशनल टैक्स में कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि अभी तक जो हम सोच रहे थे वो शायद इतना सही नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक मैंने तो ऑलरेडी 2 घंटे से ज्यादा ले लिए। राजेश जी बाद में मेरे को कहेंगे कि भाई साहब नहीं, आपने, please sir, please sir. तो This is the interest of the all members, sir. हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और आ गया सर मनोज जी का, वो कह रहे हैं एनआरई रेमिट्स इज फॉरेन सैलरी इनकम इनटू एनआरई अकाउंट्स इन इंडिया, दिस इज exempt income in India, it is shown in India tax return। सर मनोज जी मुझे ना थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ही हो रहा है, आप क्या पूछना चाह रहे थे कि जो इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एनआरई अकाउंट जो भी पैसा है उसमें वो तो exempt है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, और इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाना है जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि वो exempt इनकम के बारे में पूछता है। But any remittance of salary from for a foreign source to the Indian
बैंक अकाउंट, अगर वो पर्सन रेसिडेंट है इंडिया के अंदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि देखिए अगेन मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब एनआरओ या एनआरई या रेसिडेंट अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम डेफिनेशन देखते हैं अंडर फेमा, और जब टैक्सेशन की बात आएगी तो हम डेफिनेशन देखेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. So this Correct. is also a possibility that somebody might be a resident under FEMA and a non-resident under Income Tax Act or vice versa. तो जब हम सैलरी इनकम की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में क्या है, क्योंकि अगर वो रेसिडेंट है तो हो सकता है उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो रही हो, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, पर वो आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी. जो अमाउंट उन्होंने रेमिट किया इंडिया में उसकी टैक्सेशन आपको चेक करनी है. Once it is there in NRE account, any interest earned or that NRE account is exempt. उसमें कोई डाउट नहीं है. चलिए सर. I think I have answered all the questions, sir. Thank you very much for a wonderful deliberation on this subject. That is a new subject to us, not a new but unknown to everyone. I request our Damijaji sir for formal vote of thanks, sir. Over to Damijaji sir. Thank you, Lokeshji, very much. You have given a very good deliberation on the subject, and I think covering majority of the areas which are required for a practical knowledge of the subject, dealing with the practical problems on day-to-day basis. But there are still many areas which still need to be done. I would request Rajesh ji to call him again and especially taking into consideration these days there are assessees or our clients who generally inquire from us about the investments outside India in the form of immovable property in other areas or vice versa. So these areas, I think our members should know very clearly. And for the benefit of the members, I would again request Rajesh ji to hold a seminar on that also. And thanks a lot, Lokesh ji. You have done Thank you, very sir. well. Full justice, answering all the questions. I am really happy. Thank you very Thank you, much. sir. Thank you so much. Thank you very much, sir.